A very good afternoon, everyone. Just let me know whether I'm like audible, and then we'll start immediately. Immediately. Okay. फक्त मला सांगा की whether I'm properly audible, and then we'll start immediately. I think I will be visible properly. The screen is visible. Okay. Chalo, everyone, be quick and be active in the comments. Okay, so that we can start early and we can finish up early. Okay. Okay. Cool. Chalo. Okay. So, a very, very good afternoon, everyone. So, we're doing CA Inter revision series. We've already done FMSM. We're down to audit. Okay. And after audit is going to be law. Now, the dates have been rescheduled. Audit will be coming in two parts. This is part number one. So, in this, I'll also tell you which chapter we are picking up, and also in the next audit lecture, also. Okay. Having said this, we're not going to go to everything. As the PDF suggests, important question answers करने वाले. These are really very important because you already passed examination and RTBs में आके गए, ठीक है? Now, before I start everything, see what happens usually is I give you like 5 minutes a highlight of this what exactly I'm going to do, and नंतर अपन शुरू करें, okay? Now, number one, audit is completely theory, okay? Everything is there. The main point is chapters are divided into two modules, module one, module two. Every chapter has a weightage, okay? But what I suggest is, what I've already told you in the classes also, please start with your module number two. Please start with your module number two, okay? Because heavy marks are coming from there. Now, having said this, I've just taken the index over here, it is there in front of you. So these were the chapters which were there in your module number two, okay? Now everybody has a bit dilemma over here because see, sir, audit करने के बावजूद भी सर इतना audit करेंगे, but the main thing it ends is one thing, sir, questions क्या हैं? Because see, no matter how much you do audit, you do for 4 months, 5 months, 6 months, whatever you do, if you have not done the questions, you will not have an idea only how to write in the paper. Number one. Number two, sir, कौन से chapters को target करना है ये भी आप बता देंगे because time is very less. So what exactly are we supposed to do? So if you have module 2 in front of you, just mark the important ones. In the entire stuff of module 2, everything is important, by the way. So audit documentation, तो एक चीज और है आपने क्लास में यही किया था. In the first few days we only concentrated on the essays, okay? Essays are very 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 important, okay? And what I feel is कि अगर आपका आंसर अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे वहां पे, तो it will have no impact only on the answer, okay? So very important audit documentation. This is 230. Completion review, there are lots of essays in that. We go one by one. Audit report, one more important chapter because this is the main crux of your audit. Special features of audit of different types of entities. This chapter is there where everybody goes like this. Okay, बोलते हैं इतने हैं, hotels है, hospitals है, so many entities are there. Sir, क्या क्या लिखे वहाँ पे? So I'll give you one small trick over there. Okay, not now, afterwards. Audit of banks, and last में ethics and terms of audit engagement. Just for your understanding, आपका जो subject का नाम है, it is audit and ethics. Okay, so this is very very important. This will come for 8 to 10 marks. पूछेंगे. In fact, आपको MCQ में भी पूछेंगे और आपको descriptive question में भी पूछेंगे. Okay, so this is important. Also, today what I've done is 6, 7, 8, 10 and 11. ये chapter में सबसे ज़्यादा focus किया. You only have to simply sit wherever I am asking your opinion. Question discuss करेंगे तो मुझे आपका opinion चाहिए. I want everybody to be active in the comments. Very very simple. Okay, चलो. Now, having said this also, सबसे पहले एक काम करते हैं. We'll do one thing and then we'll go ahead. Okay. Now, I'll write it here only. Tell me one thing, sir. Audit में how should be our approach? हमारा approach कैसे होना चाहिए? So see, number one, do one thing. Number one, do one thing. From wherever you have studied audit, तुम audit कहाँ से भी सीखे रहेंगे ना, सबसे पहले एक काम करेंगे. If you have made your handwritten notes, or for that matter, if you have written down in the module, तो सबसे पहले आप सिर्फ go through करेंगे. Just go through every entire stuff. Okay? Go through का ये मतलब नहीं कि आपको ABCD पढ़ना है पूरा. एक चैप्टर को लेके स्टार्टिंग 1 पढ़ना है. ऐसा नहीं. अगर नोट्स किए रहेंगे, अगर मैं हाईलाइट भी किए रहेंगे, so please make that important. Second,
वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स, मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर which are there just within the chapter is very important. Don't leave out that, okay, because many questions will come from there only. And the most important is the sequence of your chapter जो आप पढ़ाई कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको जस्ट कहा 5 मिनट पहले कि सबसे पहले आपको मॉड्यूल 2 खत्म करना पड़ेगा एंड देन जंप ऑन टू मॉड्यूल 1. यस, मॉड्यूल 1 हैज अ वेरी वेरी हेवी चैप्टर्स. तो भले आपका ऑडिट एविडेंस हो, एवरीथिंग इज देयर, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप ये खत्म नहीं कर पाएंगे बस यहाँ से सबसे ज्यादा आपको क्या आने वाले मार्क्स आने वाले हैं, और ये इजी भी है एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1. ओके, नाउ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज इन्वेस्ट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, बट प्लीज कंप्लीट ऐसे. आपको ऐसे का लिस्ट लर्न होना चाहिए. यू शुड नो ऐसे लिस्ट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This has to be a sequence and obviously important question answers. Okay, important question answers which I will be coming in 2 videos. Okay, ये एक नंबर का वीडियो और एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जो मॉड्यूल 1 के ऊपर लेना. ओके, हैविंग सेड दिस, लिखना कैसे आंसर, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, वो सब कुछ करेंगे अपन, बिकॉज़ वैसे इसमें क्वेश्चन आंसर्स ही लिए है. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स है. अगर आपका ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं. ठीक है, और एक बात, ओके, 2-3 चीजें जो आपको पहले से लर्न करनी है. ठीक है, सबसे पहले एक तो मैंने आपको ऐसे बताया. सेकंड, आपको कारो के पॉइंटर्स लर्न करने. फॉर एग्जांपल, कारो हैज 2 पैराग्राफ्स. ओके, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, 21 क्लॉजेस और 2 क्लॉजेस. एवरीबॉडी नोज दिस. द पॉइंट इज, जब तुम कारो लर्न कर रहे हो, पॉइंट ऐसा होता है कि सर इसमें पूछेंगे क्या. चलो मान के चलेंगे तुमको कारो लर्न भी हो गया, बट सो व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन विल बी कमिंग ऑन कारो, सो वो देख लेंगे आप. ठीक है, और इंपॉर्टेंट, जो ऑडिट ऑफ बैंक्स है, उसमें जो आपके प्रोविजन के नॉर्म्स है, उसके जो आपके प्रोविजन के नॉर्म्स है, बहुत सिंपल है. आई थिंक आई हैव गॉट इट ओवर समवेयर. हां, ये आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज़ आई टेल यू वन थिंग, मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस, मेनी क्वेश्चंस, कि प्रोविजन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेनी ट्रिकी क्वेश्चंस आल्सो देयर. ओके, तो वो आज करेंगे, बट मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब ये आपको तो ऑलरेडी आया था. ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस है ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होने चाहिए, बस उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स बेस्ड है. ठीक है, चलो जैसे जैसे अपन मैं चैप्टर लेता हूं तो वैसे आपको बता दूंगा. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. एवरीबॉडी, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स है, एंड ऑल दीस क्वेश्चन आंसर इसमें क्या क्या है वो भी आपको बता दूंगा मैं. इसमें आपके आरटीपीस कवर है पूरे लास्ट वाले. उसके बाद आपके क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्स, ये भी कवर है. जो रिसेंट वाले एग्जाम्स है वो मैंने इसमें लेके रखे. ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ, अगर आपने सच में इफ यू जस्ट गॉन थ्रू ऑल द आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, यू माइट गेट अ ग्लांस कि यार सर बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गए. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन लिए नहीं मैंने, जो वैरायटी है, जो यूनिक है, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हुए हैं. ठीक है, चलो कैन वी स्टार्ट. नंबर 1, ओके, आई वांट योर ओपिनियंस आल्सो. ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी है, ये क्वेश्चन आंसर बेसिकली कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, तो आपका ओपिनियंस यहाँ पे मायने रखेगा. ठीक है, सबसे पहले चैप्टर उठा रहे अपन एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ओके, जो आपके पूरे करिकुलम का जो लास्ट वाला चैप्टर है और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वो पहले ले रहे हैं अपन. एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हियर, सो प्लीज स्टार्ट टू गिव योर आंसर. ठीक है, CAX has been offered, CAX has been offered audit of CAX has been ordered for audit of financial statements of TDK Industries, a partnership. ठीक है, उसके बाद prior to accepting proposed offer, he insists upon obtaining an agreement of management regarding acknowledgement of his responsibility of having a proper process in place to ensure that financial statements prepared are free from material mistake. सर यहाँ तक क्या क्या हुआ है सर? एक CAX है, उसको भाई साहब ऑफर हुआ है किसका? सर TDK इंडस्ट्रीज के ऑडिट करने का. उसके बाद prior to accepting the proposed offer, he is insisting upon the obtaining an agreement of management. भाई साहब कैसे होता है, आपको फ्लो तो मैंने पहले ही बता दिया. भाई साहब जब आप ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले आपका एंगेजमेंट होता है. एंगेजमेंट का ऐसे क्या है बताएंगे मुझे एवरीवन? ऐसे 210 ऐसे 210 में क्या होता है सर? मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर दे विल सिट, दे विल हैव अ स्कोप, और एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे. एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे. लेटर में क्या करेगा सर? लेटर में स्कोप रहेगा सर, स्कोप रहेगा. If there is any limitations over there, if they want to improve and something like that. But the main thing of those of us is what is the main ideology behind engagement letter? Sir, both of them must be on the same page. Auditor and the management also. तो ये भाई साहब ऑडिट के पहले होगा ना, उसके बाद ये भाई साहब प्लानिंग करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ऑडिटर है, he insisted upon obtaining an agreement of management regarding acknowledgement of his responsibility of having a proper process. वो तो उसको पूछना ही पड़ेगा responsibility in place to ensure that the FS are prepared are free from material mistake. आपको और एक चीज मैं बताऊं, जब भी आपने बहुत बार किया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपरेशन है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑडिटर का है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के इसको दे देगा किसको? एंड ऑडिटर का एक फॉर्मल क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई साहब ये तूने एफएसओ दिया ना मुझे, इज इट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? तो ऑब्वियसली पूछेगा उसको पहले. नाउ however, management is the view that it is the auditor's duty to detect
the material misstatement in FS and such an insistence by the auditor is totally uncalled. मैनेजमेंट उल्टा उसको क्या बोल रहा है, ए बाबा ये हमारा बात नहीं है, ये तू चेक कर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना तेरा है, हमको मत पूछ, हमको नहीं पता इसमें क्या है, ऐसा मैनेजमेंट उसको आंसर करे ऑडिटर. ओके, नाउ हुज व्यू इज प्रॉपर, ये आपका पहला क्वेश्चन है, हुज व्यू इज प्रॉपर. आई जस्ट हाईलाइट दिस, एवरीवन पे अटेंशन ना, बिकॉज मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस विल इजी, कंटेंट बहुत है ऑडिट में, बट अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे ना, आपको लगे हाँ आई कैन राइट दिस थिंग, बट राइटिंग अ क्वालिटी आंसर इन ऑडिट will need practice. Okay, but pay attention whose view is proper, like the management of the auditor. Also discuss reasons for arriving at your conclusion, second question, and what should be likely proper course of action for CAX in the above situation. भाई साहब, now tell me one thing sir, इस पूरे इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि कौन बराबर है, is the auditor right, can the auditor insist from the management to ask them कि whether the financial statements are free from material misstatement, क्या ऑडिटर उसको पूछ सकता है, आपका मुझे ओपिनियन चाहिए, ये पहला. एंड अगर है तो आगे के क्वेश्चन बाद में फॉलो करेंगे उसके. प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर एंड इसमें बराबर कौन है, मैनेजमेंट इज राइट और द ऑडिटर इज राइट. प्लीज फास्ट आंसर चाहिए, वेरी फास्ट. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर. ऑडिटर इज राइट और द मैनेजमेंट इज राइट, एवरीबॉडी हैज टू आंसर, एवरीबॉडी हैज टू आंसर फास्ट. ऑडिटर और द मैनेजमेंट. We once and let me open up my YouTube comments देखना है मुझे. चलो, who is right? Now answer the coming. So auditor view is proper. Auditor view proper है. तो सबसे पहले see very normal. Now we just cannot write one word and come out here. नहीं सर ये तो बराबर है ऑडिटर, कुछ भी लिख रहे हैं ये लोग यार. नहीं, आपको एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करना पड़ेगा. तो प्लीज पे अटेंशन. सबसे पहले ऐसे 210 वही बात कर रहे हैं अपन कब से 210 जो एंगेजमेंट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद काउंट PCWG. And this includes establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rest with the management and where appropriate those charges with government. सबसे पहले 210 का ये जो फ्लेवर है वो पहले एग्जामिनर को आपने बता दिया कि मुझे बाबा ये पता है. That's number one. ये आपका number one point हो गया. Second, the objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed. बराबर है ना भाई साहब? अगर एंगेजमेंट में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत लिमिटेशंस डाल रहा है मैनेजमेंट, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, हम आपको ये बुक्स ऑफर नहीं देंगे, तो भाई साहब आप पहले से ही बोल दोगे उसके, भाई मैं ऑडिट नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट. नेक्स्ट, establishing whether the precondition for an audit are present and confirming that there's a common understanding between the auditor and the manager. What's common understanding? Both should be on the same page. अगर both same page पे है, responsibility समझ ले उन दोनों को, तो भाई साहब आपका आंसर बहुत सिंपल है and you will go ahead with the audit. One of the preconditions for an audit is to obtain the agreement of management that acknowledges and understands the responsibility of preparation of FS. भाई साहब 210 के एक पॉइंट में ऑडिटर उसको एक क्लियर कट बोल देगा, देख भाई the responsibility for preparation of financial statements and also preparing them to according with what FRF financial reporting framework, वो तेरा responsibility है भाई, उसके बाद तू मेरे पास देगा. तो ये पहले से ही 210 में आपने लिख के रखा. आगे देखो, and for such internal control as is necessary to enable preparation of affairs that are free from material misstatement. ये जो है ये एक प्री कंडीशन है. प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? प्रिलिमिनरी, शुरू करने से पहले, और ये उसके दिमाग में आना चाहिए, किसके दिमाग में सर? मैनेजमेंट के दिमाग. ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन सिचुएशन, अभी देखो ऊपर तक जितना भी किया है ये सब अपन ने प्रोविजंस लिखे, ये लीगल प्रोविजंस लिखे. सर लीगल प्रोविजंस पे तुम्हारा 210 पे आने वाला है. इसके बाद अपन आएंगे फैक्ट्स के ऊपर जो ऑलरेडी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलने वाला है. इन द गिवन सिचुएशन CAX insisting only upon obtaining agreement of, and this is all the question. Okay, now design implementation maintenance of internal control ensure management, therefore CAX view is proper. Okay, तो जो आपने आंसर बराबर था. In case management does not provide such agreement acknowledging the responsibility, the auditor shall not accept proposed audit engagement unless required by law or regulation. Obviously यार, because अगर management नहीं बोल रहा है, मैंने बोल रहा है यार नहीं ये नहीं करेगा, we will not give access to this and this, and the preparation of the responsibility वो तेरा है, तो भाई सीधा बोल दो यार मुझे एक्सेप्ट ही करना नहीं है. So सबसे पहले आपका ये वाला भी आंसर हो गया, and we will not accept if they are not agreeing to your disclose. Is it okay everybody? Everybody okay with this? I want everybody to pay attention, please. चलो, give me 1 second.
Just everyone comment who all are there. चलो सर, क्वेश्चन नंबर 2, अपन पहले इथिक्स ही खत्म कर रहे हैं. वी आर फर्स्ट कंप्लीटिंग इथिक्स एंड देन वी आर गोइंग. SA 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC1 standard of quality control. What do you understand by given statement in context of audit quality? सर सबसे पहले एक चीज दिमाग में डालो. सर क्वालिटी कंट्रोल जब बात करते हैं इसका मतलब क्या है? सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल का यही मतलब होता है कि ऑडिटर उसका ऐसे फॉलो कर रहा है. ही इज नॉट गोइंग डूइंग समथिंग आउटसाइड द बाउंड्री. जब भी वो कुछ कर रहा है, एक सीक्वेंस होता है ऑडिट में. तो पहले एंगेजमेंट होगा, फिर प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम होगा, फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. ये सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए. नसीब, this it's a very general question. It's a very general question. See, what do you understand by the given statement? ये question. Audit quality is essential to maintain dash. सबसे important, please जितने भी questions मैंने लिए ना आज, थोड़ा फार बैठिए, लाइव बैठिए and understand the question. Every question is different and it comes with a variety. ठीक है? Audit quality is essential to maintain confidence in the independent assurance provided by the auditor. सर बराबर है. अगर ऑडिटर ने कुछ तामझाम कर दिया, उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसने ऐसे फॉलो नहीं किया, तो भाई साहब सर भरोसा उठ जाएगा किसके ऊपर? सर शेयर होल्डर्स के ऊपर. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेंटेन हाई ऑडिट क्वालिटी. जैसे अपन बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैनेजमेंट का काम है, तो सर ऑडिटर का भी कुछ काम रहेगा ना सर, कि उसको ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे एंड टू मेंटेन क्वालिटी इन द ऑडिट. SQC1 and SA 220 both deal with quality control. SQC1 applies to entire firm. However, SA 220 applies to particular audit engagement जिसका आप audit engagement कर रहे हैं. एक बार वापस तो कभी आपको पूछ सकते हो SQC1 and SA 220 प्रॉब्लम क्या है सर? दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है सर? दोनों भी क्वालिटी से ही डील करते हैं. बट अगर आपको एकदम पूछा जाए, ये पूरे एंटायर फर्म को लगता है, ये एंटायर फर्म को लगता है, और ये एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को लगता है. पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को लगता है. प्लीज मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. Based upon the quality control system of the firm established in accordance with the requirements of SQC1, quality control policies pertaining to audit engagement are decided by the engagement team. What is the engagement team? इसका हम ऑडिट करते हैं. engagement team होते हैं, उसमें engagement partners होते हैं, फिर आर्टिकल्स भी होते हैं. engagement partner of a team is responsible for quality control. उसको भी देखना चाहिए भाई साहब. जो सीए रहेगा वो वही देखेगा, हाँ ये फ्रेशर है, इसको अपने को कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं देगा, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है. So this maintains your quality. Therefore, SA 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC1 because SQC1 is applicable to entire firm. Within the context of the firm system of quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedure applicable to audit engagement. देखो भाई साहब, पार्टनर सबको बोल देगा आपको काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम कौन करने वाले हैं? तो जो एंगेजमेंट टीम है वो काम करने वाले. They have to maintain the quality control in the entire audit procedure. Okay, it's a very general question. चलो, can we go on to the next question please? Question number 3, ethics का पूरा ethics का लिया मैंने पहले. ठीक है, चलो. ABC and Associates, an audit firm, has been approached by a prospective company client that has been in business for about 10 years to conduct an audit of its FS. एक बार वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन. ABC and Associates, an audit firm, has been approached by a prospective company client that has been in business for about how many years? 10 years to conduct an audit of FS. मतलब उसको अप्रोच हुआ कि भाई मेरा ऑडिट करेंगे. So before accepting the audit engagement, the firm wants to access the integrity of the prospective client. भाई साहब देखो, अभी ऑडिटर ये बोल रहा है, I want to understand the business of the management. आपको पता है छोटा सा ऐसे था, मतलब छोटा है, उसका ये बहुत बड़ा है डिस्क्रिप्शन. ऐसे 315 क्या था पता है आपको? सर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट्स एनवायरनमेंट रिस्क, ये सब था 315 में. सर यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले द ऑडिटर वांट्स टू नो द डैश. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, एक ही वर्ड है उसमें. और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट विद रिगार्ड टू द असेसमेंट ऑफ इंटीग्रिटी व्हिच मैटर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिट फर्म. सर ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है सर, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये. मतलब देखो ना, अगर मैं आपको मॉडल ऑफ द स्टोरी बताऊं इस क्वेश्चन का, सर एक ऑडिटर है, उसके पास एक क्लाइंट अप्रोच हुआ है और ये क्लाइंट 10 साल में बिजनेस में है. तो अभी ऑडिटर क्या बोल रहा है कि यार तेरा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मुझे तेरा इंटीग्रिटी चेक करना है, मुझे तेरा ऑनेस्टी चेक करना है. तो आप एज अ ऑडिटर क्या क्या चेक करेंगे? सर विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, सबसे पहले द आइडेंटिटी एंड द बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स. दो चीजें यहाँ पे अंडरलाइन करता हूं मैं, द आइडेंटिटी and the business reputation in the market. Okay, फिर the nature of the client's operations, उसके operations कहाँ फैले हुए हैं, कितने ब्रांचेस है,
बहुत कॉम्प्लेक्स है क्या, एक बार वापस सबसे पहले आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन में क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर जो भी रहेंगे, तो इसी ना जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहेंगे, तो उनका रेपुटेशन कैसे है, कुछ केसेस चल रहे हैं क्या उनके खिलाफ, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड, उनका नेचर चेक करना पड़ेगा, कौन सा नेचर, ऑपरेशंस का, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो। इंफॉर्मेशन कंसिडर एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, key management and TCWG, such matters aggressive interpretation of accounting standards and internal control। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। कुछ मतलब ब्लैक मनी इसका ये यूज कर रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं क्या, ब्लैक टू व्हाइट कर रहे हैं, ये सबको आपको चेक करना पड़ेगा। whether client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible। मतलब ऐसा नहीं है यार, काम तो करवा रहे हैं, जब फीस का बात आ रहा है बोला नहीं हम इतना नहीं देंगे पैसे, तो वो भी आपको एक चेक करना पड़ेगा। इंडिकेशन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट इज स्कोप ऑफ वर्क, सर ये 210 में काम में आएगा। मैं स्टार्टिंग में बोल रहे आप इस अकाउंट को हाथ लगाएंगे नहीं, ये प्राइवेट अकाउंट है, तो अगर जहां पे लिमिटेशंस आ रहे हैं तो इसमें आपको पहले बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। इंडिकेशंस दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्वड, वही मैं बात कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग और एनी अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसा घुमा तो नहीं रहा है, ठीक है, मतलब वेदर ही इज money laundering, this black money convert and all that stuff, if this is happening and you will not go ahead with the audit, so you tell me one thing, if this question comes in the examination, will you leave these kind of questions? No sir, we'll write a very general, हाँ एकदम general मत लिखो, what, don't go off the radar, ये तो आपके points आने चाहिए, ठीक है। चलो next, can we go on to the next question please, everybody pay attention। CA Sudhakar has been appointed as the auditor of Umbro Limited। I want your opinions also and take something from every question। Every question is unique। Chapter भले वो same ही है, but सब के सब questions अलग-अलग है, ठीक है। CA Sudhakar has been appointed as the auditor of Umbro Limited। But before accepting the appointment, he learns that his cousin, who held the shares in the company and recently passed away without children, named him as a nominee for these shares। भाई साहब, सबसे पहला रूल ऑडिट का, फर्स्ट रूल, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। मैं शायद से रिसेंटली लेक्चर्स में आपको कहा था कि जब भी ऑडिट रिपोर्ट भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले वहां पे वर्ड क्या आता है ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हुआ मुझे बताओ सर, वो अपॉइंट हुआ है एक कंपनी का एम्ब्रो लिमिटेड करके है। अब बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट भाई सबको ये समझ में आता है कि यार उसका एक कजन है और उसके शेयर उसी कंपनी में, ठीक है, और वो मर भी जाता है, उसको चिल्ड्रन नहीं है, एंड चिल्ड्रन नहीं होने के कारण इसको ही वो बना देता है क्या कि नॉमिनी, which has a very substantial value, बहुत ज्यादा वैल्यू है। Although holding such shares to a distant relative does not violate legal provisions or affect independence, this unexpected inheritance places him in a dilemma। देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया उन लोगों ने, मतलब वो आपको ही डिलेमा में डाल रहे हैं वहां पे एग्जाम में। पहले शुरू कहां से किया उन लोगों ने कि भाई साहब को ऑडिटर को अपॉइंट हो गया, और फिर ये कहा कि उसका कोई तो कजन है, उसके शेयर्स थे, वो मर गया, उसके बच्चे नहीं है, तो इसको नॉमिनी करके अपॉइंट कर दिया। अभी एज ए ऑडिटर ये सीए सुधाकर ये सोच रहा है यार छोड़ना, इतना डिस्टेंट रिलेटिव है और क्या फर्क पड़ेगा मेरी इंडिपेंडेंसी का, तो वो खुद एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में। अभी क्वेश्चन क्या रहेगा, एडवाइस सीए सुधाकर ऑन हाउ ही शुड डील विद द सिचुएशन एंड सेफगार्ड इंडिपेंडेंस। वो आपको पूछ रहे हैं, वो आपका एडवाइस पूछ रहे हैं। अभी आपको कन्फ्युजन में रहना नहीं है वो 3 घंटे में, मला काय माहित त्याला विचार सुद्धा करला असं नाही दिलं लिहायचं, तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे कुछ, बताएंगे मुझे कि ये जो उसका कजन है उसके जो शेयर्स है और जाके ये नॉमिनी बनाए तो कुछ इंपैक्ट आएगा कि इंडिपेंडेंसी के ऊपर। यस सर ऑब्वियसली आएगा सर, कौन सा भी रहने दे वो नॉमिनी है ना वहां पे, इज ही होल्डिंग सम शेयर्स इन दैट कंपनी, द आंसर विल बी यस, और उसके ऊपर से उन्होंने एक बड़ा वर्ड भी लिखा है वहां पे, सब्सटेंशियल वैल्यू। अभी अमाउंट लिखा नहीं है, सब्सटेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा। द पॉइंट इज व्हाट, एक मतलब आंसर पढ़ेंगे अपन, बड़ी टेल मी योर ओपिनियन। सो ओपिनियन यही रहेगा, अगर उसको ये कंटिन्यू करना है, he has to make sure he is selling all the shares। अगर वो शेयर्स बेचता है then he can continue with the audit, ठीक है, we'll learn what is the answer। In the given situation, holding shares by CA Sudhakar involves financial interest। अगर आपको पता लगा ethics में 2 क्वेश्चंस है जो बहुत ही फेमस है, threats to independence, फाइनेंशियल थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, ये सब कुछ उसमें आता है, और उसके आगे सेफगार्ड्स भी आते हैं। तो ये बताओ सर थ्रेट ही तो है ना, ये देखो ना सर कौन सा थ्रेट है, अरे भाई साहब फाइनेंशियल इंटरेस्ट का थ्रेट है। सी holding shares by CA Sudhakar involves financial interest in the company and is the nature of self-interest threat. Okay, though he has come to hold shares due to nomination made by distant relative before accepting the appointment, CAs have a responsibility to remain independent by taking into account the context with the practice, the threats to independence, or safeguards available to address the threat। सेफगार्ड्स आर एक्शंस और इंडिविजुअली, थ्रेड तो आपको मिलेंगे, बस सेफगार्ड्स का मतलब क्या, आप थ्रेड को कैसे निकाल देंगे, ठीक है। सो सर इसको इश्यू को एड्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, for the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that the auditor should always be what, independent, इक्वल इंपॉर्टेंट है,
बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क ऑडिटर मस्ट कंसिस्टली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। काम एक्सेप्ट करने से आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर इसमें से कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई मुझे इंटीमिडेट कर रहा है, बहुत सारे थ्रेट है, देखो आपको प्रमोट भी नहीं करना है उसका काम, यू शुड नॉट कम इन एनी ऑफ द थ्रेट। If the auditor is unable to fully implement the credible and adequate safeguard, then he must not accept the work. अगर लग रहा है कि थ्रेट है, वो कंटिन्यूस थ्रेट रहने वाला है, आप उसको निकाल नहीं सकते, तो आप काम ही एक्सेप्ट मत करो, ठीक है? Where such threat exists, the auditor should either desist from the task or eliminate the threat, or at the very least put in place safeguard with reduce the threat. अभी इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ थ्रेट तो दिख रहा है, थ्रेट दिख रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का थ्रेट, तो एक ही चीज आप कर सकते हैं ना, एक तो काम एक्सेप्ट मत करो, और सेकेंड वो शेयर्स बेच दो। अगर आप शेयर्स बेचते हो, जाके बोलते हो कि भाई मैं 1 रुपए का शेयर नहीं हूं तेरी कंपनी में, देन यू कैन कंटिन्यू योर ओन वर्क, ओके? इसके बाद आपका लास्ट में मस्त की कंक्लूजन रहेगा, considering above, holding of shares of same company for which he is offered appointment as auditor constitutes threat to his independence. Therefore, CS Sudhakar should take the steps to dash eliminate the threat by dash. क्या एक आंसर रहेगा, selling the shares immediately before accepting the appointment, and in the absence of sale, he should not accept the appointment. भाई साहब इस पूरे इसका दो आंसर है, क्या दो आंसर है? एक तो आप एलिमिनेट करेंगे, एक तो आप एलिमेंट से एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक ही आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड क्या रहेगा, नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, एज सिंपल एज दैट, ऑडिट एक्सेप्ट मत खत्म करो बात, ठीक है? एवरीबॉडी ओके विद दिस? एवरीबॉडी ओके विद दिस? क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, इनफैक्ट same questions have come, okay? So this was your ethics, okay? Next is starting with your audit of banks. Everybody pay attention. Audit of banks में बहुत ही भारी वाले वैरायटी वाले क्वेश्चंस है, आपको प्लीज ध्यान देना, ठीक है? एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ। इफ यू हैव अ कैलसी, आप कैलसी भी लेके बैठ सकते हैं, तो रेफर कैलकुलेशन से, ठीक है? चलो, ऑडिट ऑफ बैंक्स में मैंने आपको पहले ही कहा था एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेवड़े पण क्वेश्चन आले एडवांसेस हुआ। दूसरी बात, एनपीए के प्रोविजन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एनपीए के प्रोविजंस आपको आने चाहिए नॉन परफॉर्मिंग असेट के, ठीक है? वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे, ठीक है उन लोग। चलो, कैन वी गो अहेड? Can we solve the first question? Like we read. While verifying provisions of advances, okay, of a branch of MCO bank as part of statutory branch audit, CAZ notices that the credit facilities consisting of term loan ART enterprise have been classified under doubtful asset D1 category. अभी I hope you what is D1 category, ठीक है? कोई बात नहीं, अपन मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो पहले 15 substandard, फिर doubtful D1, D2, D3 और लास्ट में लॉस वाले रहते हैं, ठीक है? The outstanding balance in above term loan account is 50 lakhs. Value of security held in account is 40. What is security? Security का बात करते हैं, ठीक है? The branch has made provision of 7.50 lakh. Is this provision made by branch proper? आपको एक ही चेक करना है कि भाई साहब ये जो उन्होंने प्रोविजन बना के रखा है 7.5 लाख का, वो बराबर है क्या नहीं, ठीक है? आप में से कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका? आपके सामने सब फिगर्स है, सिक्योर्ड भी कितना पोर्शन है, अनसिक्योर्ड भी कितना है, और मेरे हिसाब से आपको अच्छा आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला बात कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट डाउटफुल अप टू D1 का बात कर रहे हैं। जो लोगों को पता नहीं है वो 2 मिनट ध्यान देंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट है ये, अगर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं आने वाला है तो ये आप क्लासिफाई करते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट का प्रोविजन बनाने का यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, ठीक है? तो ये D1 का यहाँ पे D1 है, D1 में क्या बना है सर, जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर आप 25% करेंगे, और जो अनसिक्योर्ड है उसके लिए आप 100% का प्रोविजन कर देंगे एक बार वापस, सिक्योर्ड के लिए 25 और इसके लिए 100। So on this basis, can you answer me this question and can you please tell me कि जो प्रोविजन बनाया उन लोगों ने वो बराबर है या नहीं है? प्लीज फास्ट, जल्दी बताएंगे सर। सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना जो लिखा है वो 50 लाख, ठीक है? उसमें से एक काम करेंगे, जो सिक्योरिटी वो निकाल दो ना, हमको अनसिक्योर्ड पोर्शन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 50 माइनस 40 कितना आ जाएगा सर? ये 10 लाख का आपका अनसिक्योर्ड का पोर्शन है। अभी 10 लाख के ऊपर कितने का प्रोविजन करना है सर? 25%। अभी जस्ट चेक किया D1 कैटेगरी में, तो 10 lakhs वेट इज सर 40 के ऊपर 25 दैट इज अ सिक्योर्ड, और जो अनसिक्योर्ड है उसके ऊपर 100% जाएगा, तो 40 के ऊपर 25% आएगा, और जो अनसिक्योर्ड है उसके लिए कंप्लीट 100% जाएगा, मतलब पूरा 10 लाख का 10 लाख यहाँ पे आने वाला है, ठीक है? एक बार वापस सर, 50 का आपका ये था आउटस्टैंडिंग, इसमें अपन दोनों कैटेगरी किया, जो 40 है और जो 10 है। 10 जो है वो अनसिक्योर्ड है, जो 10 है वो अनसिक्योर्ड है, इसको 100% आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, और ये जो सिक्योर्ड का है तो उसके लिए प्रोविजन का परसेंटेज कम है और वो 25% है। वेरी सिंपल, तो 40 इंटू 25% दैट इज 10, और यहाँ पे 10 हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोविजन 20 लाख रुपए का करना चाहिए था। भाई साहब इन लोगों ने कितने का किया है? इन लोगों ने कितने का किया है सर? इन लोगों ने सिर्फ 7.5 लाख रुपए का किया है।
समझ में आ रहा है आपको? So what will be your answer? Therefore, provision made by branch is not proper. It should have made provision of 20 lakhs instead of 7.5 lakhs. Everybody okay with this? Everybody okay with this? Yes or no? Everybody okay with this? क्या आपको समझ में आई है प्रोविजंस? और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस ऑडिट ऑफ बैंक्स में बहुत बार पूछे गए. एटलीस्ट एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस ऑडिट ऑफ बैंक स्पेसिफिक दिस कैटेगरी वाला. मतलब वो आपको बनाएंगे कि ये प्रोविजन किए हैं, आप कंप्यूट करके बताओ कि प्रोविजन बराबर है कि नहीं, कम है ज्यादा है. तो यहाँ पे क्लियर कर आंसर कि 7.5 लाख प्रोविजन, आपने कितना निकला 20 लाख का, तो 20 लाख का प्रोविजन चाहिए था. ठीक है, चलो कैन वी गो अहेड एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबका ध्यान चाहिए मुझे. आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत ही भारी वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बोलता हूँ ताकि हम थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे. देन वील गो. आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन. तुम्हारा सगळे क्वेश्चन संपूर्ण जायचं आहे. मी परत सांगायला लागलोय, nobody will leave from between, nobody is going to watch recording afterwards, everyone pay attention. So there is one thing, okay, pay attention. Sir, एक तो आपका होता है सर सैंक्शनिंग लिमिट, एक आपका होता है सैंक्शनिंग लिमिट, और एक आपका होता है ड्राइंग पावर. पे अटेंशन. ओके, एक या शायद से आपने किया रहेगा ये, एक आपका होता है ड्राइंग पावर. ओके, नाउ भले आपको सैंक्शनिंग 10 करोड़ का मिला रहेगा बैंक से, बट इट ऑल डिपेंड्स कि तुम ड्रॉ कितना कर सकते. अभी एक चीज में है, आप जब भी ड्रॉ करते हो तो भाई साहब आपने सिक्योरिटी, आप स्टॉक दे सकते हो, आपका स्टॉक, और स्टॉक का वैल्यू कभी भी फ्लक्चुएट होते रहता है. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन आस्क्ड इन वन ऑफ द आरटीपीस. लेट्स जस्ट सी. कंप्यूट द ड्रॉइंग पावर फॉर सीसी अकाउंट ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 24 विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं मैं. कंप्यूट द ड्रॉइंग पावर फॉर सीसी अकाउंट. ओके, रिमेंबर वन थिंग, आपको सैंक्शनिंग लिमिट निकालना नहीं है, आपको ड्रॉइंग पावर निकालना है. ठीक है, ओके सर, कौन से मंथ का निकालना है सर? मार्च 24 का निकालना है, मार्च 24 का. ओके सर, नो प्रॉब्लम. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया एक बार पढ़ लेंगे. सर स्टॉक देके रखा है, ठीक है, डेटर्स देके रखे हैं 55,000. उसके बाद ये भी दिया उन लोगों ने कि भाई सर 55,000 में 55,000 में 15,000 का इनवॉइस डेटेड पिछले साल का था, 20 अक्टूबर 2023 का था. ओके सर. सन्ड्री क्रेडिटर्स देके रखे 10,000, और सैंक्शनिंग लिमिट यहाँ पे देके रखे. सबको प्लीज कृपया करके ध्यान देना है, 48,000 का इनका सैंक्शन लिमिट है. मार्जिन ऑन स्टॉक कितना मेंटेन कर रहा है बैंक? 30%, डेटर्स पे 40%. वो कट करके आपको पैसा रिलीज कर देगा. Debtors older than 3 months are ineligible for calculation of DP, due to the drawing power. Okay, now the point is what, ये 20 अक्टूबर 2023 का है, ऑब्वियसली निकालना है तुमको मार्च 24 का, तो 3 महीने पुराना है, ये तो लेने का नहीं है तुमको. नाउ आराम से एकदम इजीली मुझे जनरली आंसर दो. ठीक है सर, सबसे पहले सर ड्राइंग पावर निकालने के लिए सर, एक तो ये 60,000 लेना पड़ेगा हमको, 60,000. अच्छा, इसमें से मुझे बताएंगे, ये तो स्टॉक आपका जो असेट है, पर इसमें ये भी एक क्रेडिटर्स, तो वो निकाल दो पहले यहाँ से. 10,000 निकाल दो, ये आपका बचेगा 50,000, 50,000 बचेगा. अच्छा, और एक बात, ये भी लिखा है कि मार्जिनल स्टॉक कितना है, 30% है, तो बैंक आपको इतना तो देगा नहीं. भले आपका 50,000 का स्टॉक रहेगा, पर वो देगा नहीं उतना आपको. ओके, बोले भाई मार्जिन रखना है मुझे, तो मार्जिन कितना है? 30% है. 50,000 इंटू 30% कितना आता है? 15,000. तो ये भी इसमें से माइनस करेंगे आप, 15,000 कितना बचेगा सर? 35,000 यहाँ पे बच. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डेटर्स. डेटर्स में 55,000 है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट 55,000 में से वो क्या बात कर रहे हैं, वो 15,000 आपको लेना नहीं, तो 50,000 माइनस हो जाएगा. सो 40,000 आपका ये रहेगा डेटर्स, बट डेटर्स में कितना मार्जिन है? 40%. तो 40,000 इंटू 40% कितना आता है? 16,000 ये आएगा. कितना बचेगा? 24,000 बचे. कितना बचेगा? 24,000. सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज टेल मी वन थिंग, ये 35,000 और ये 24,000 कितना होता है? प्लस 24,000, हाउ मच? 59,000. क्या आपका आंसर 59,000 आया क्या? 59,000. मैं ये सिर्फ चेक करा कि इनका आंसर कितना है. 59,000. Did you understand this? Did you understand this? एनपीए क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार आएगा? वापस रिपीट होगा क्या? यस यार, Asta it might come in because if you see the past articles and past such chances, so there will be quantum, so many questions are repeated. खास करके ये NPA वाला बहुत बार रिपीट हुआ है. There will be chances of this coming, but there were tons of variety. Okay, वही कवर कर रहे हैं. ये एक ही वैरायटी है ड्राइंग पावर वाला, ये भी आप टॉप इस पे रखेंगे प्रायोरिटी. ठीक है, Did you understand the calculation of 59,000 everyone? It's very simple. Okay, तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो स्टॉक है उसमें से पहले मार्जिन माइनस करना है और क्रेडिट्स भी माइनस करना है, और डेटर्स में से 50,000 लेना नहीं है आपको. Why? Because it is older. यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि ओल्डर देन 3 मंथ्स आपको इनएलिजिबल, वो लेना नहीं है. उसके बाद जो मार्जिन है वो भी कट करना है. तो भाई साहब 59,000 का, सुनो अभी एक में यहाँ पे लिखो क्या सर, ये सैंक्शन लिमिट है और ड्राइंग पावर है. ओके,
प्लीज पे अटेंशन. मला एक सांगा रे, सँक्शनिंग लिमिट कितना सँक्शन किया तुमको? प्लीज पे अटेंशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सैंक्शनिंग कितना था सर? सैंक्शनिंग, सर सैंक्शनिंग यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, सैंक्शनिंग लिखा था 48,000 और तुमने ड्राइंग पावर कितना निकाला? 59,000. नाउ यू ओनली टेल मी, आपका लास्ट अमाउंट कितना रहेगा रे? तुमको ड्राइंग करने को देंगे क्या 59,000? ऐसा देंगे रे. तुमको सैंक्शनिंग कितना दिया? अरे विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. समझ में आ रहा है क्या? सर 48,000 ही देगा ना, तुमको लिमिट ही उतना सैंक्शन किया है, तुम काय का निकालेंगे ड्राइंग पावर इतना 49,000 का? तो लास्ट में आपका आंसर क्या रहेगा? बिगिन आंसर. The sanctioning limit given in the question is 40,000, whereas drawing power is as per 15,000. So drawing power would be restricted to sanction limit of 48,000. सब लोग ध्यान देंगे, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक और इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, इंपॉर्टेंट भी है ये. एक बार वापस वापस, शायद से आफाक भाई आप भी आए. आफाक भाई ध्यान देना आपको, ठीक है? वो फोटोग्राफी करना नहीं है, आपको ध्यान देना है, ठीक है? एग्जाम नजदीक आ रहा है, कंप्लीट ध्यान दो. वो इंस्टा में सिर्फ रीड करो पहले. जैन 25 में अटेम्प्ट है, बाद में नहीं है. लक्ष्य दे सकेंगे प्लीज. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सर, ऑडिट ऑफ बैंक्स में आपको दो चीजें पूछी जाएंगी, एक सैंक्शन लिमिट और एक ड्राइंग पावर. इस क्वेश्चन में ड्राइंग पावर पूछा गया है, पर रेफरेंस में आपको सैंक्शन लिमिट वहां पे देके रखे होंगे. ओके, उसके लिए आपको हाथ कुछ लगाना नहीं है, वो कंपैरिजन के लिए, उसको मत करो प्लस माइनस. तो जब आप निकालेंगे तो आपके एसेट्स क्या क्या है आप ध्यान देंगे. आप सर 60,000 स्टॉक था मेरा, तो भाई साहब स्टॉक के लिए मेरा लाइबिलिटी भी है ना वहां पे, क्रेडिट लाइबिलिटी है मेरा, तो मैंने उसमें से पहले क्या माइनस कर दिया, 10% माइनस कर दिया, 50,000 रहा. उसके बाद जब बैंक आपको पैसा देता है तो वो कभी भी मार्जिन में रखता है खुद के पास, और मार्जिन में यहाँ पे क्लियर कर मेंशन करके 30%. तो मैंने क्या किया, 60 में से 10 माइनस किए पहले जो क्रेडिटर्स के थे, उसके ऊपर मैंने क्या किया, मार्जिन मनी साइड में रखा. तो इसका कितना आया सर? 35,000 रुपीज आया उसका, उसका वैल्यू आया. उसके बाद डेटर्स का पॉइंट है सर, डेटर्स 55,000 थे, 55 में से मैंने 15,000 माइनस किया. क्यों माइनस किया तुमने? तो यहाँ पे क्लियर कर मेंशन किया कि ओल्डर एंड 3 मंथ्स आर इनएलिजिबल फॉर कैलकुलेशन. अरे भैया मार्च 24 का निकालना है, ये अक्टूबर 23 का है, तो वो तो वैसे ओल्ड हो गया, तो वो माइनस हो गया. तो 55 में से 15 गया, 40,000 बचे, और 40,000 पे भी आपने मार्जिन कितना मेंटेन किया? 40%. 16,000 माइनस किया तुमने, 24,000 आपका बचता है. तो 35 प्लस 24 आपका 59,000 का ड्रॉइंग, आप ड्रॉ उतना पैसा कर सकते हो. बट द कैच इज व्हाट सर, सैंक्शन तो 48,000 ही है सर, तो आपका अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड बाहर तक ही हो जाएगा. एवरीबडी ओके विद दिस? गिव मी अ यस और नो फास्ट. गिव मी अ यस और नो. एवरीबडी ओके विद दिस? देन ओनली आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, ये तो बहुत बाप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि ड्राइंग पावर समझ में आया? एवरीबडी ओके विद दिस? Everybody okay with this? If you have done with that, then only I'll go ahead. Everybody, have you understood drawing power? Have you understood this concept? This, तो ये आपका फाइनल किया जाएगा. 48,000 will be your amount final. 48,000 will be amount which is final. 48,000 will be amount which is final. Everybody, can you please tell me yes or no, so that I can go ahead immediately. Okay. Second लक्ष्य ऐसा है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, तुमको भारी भारी क्वेश्चंस आ जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, मैं आपको एक क्या 2 दिन आ सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है. एंड आल्सो मेक श्योर कि तुम नेक्स्ट ऑडिट सेशन मिस नहीं कर रहे हो, वो मॉडल 1 का रहने वाला है. ठीक है, चलो पे अटेंशन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने, बट इजी है. ठीक है, ध्यान देना. Agreem, a CA student, is a part of engagement team, okay, conducting audit of Madurai branch of ARB Bank. CA Bhuvan, उसका engagement partner, has asked him to verify the provision made by branch as on 31st of March 24. ये छोटी प्रश्न कशा हो रहा है, provision हो रहा है. In respect of the following non-performing asset, ये जितने भी आपको टेबल दिए ना, ये सबके सब non-performing asset है, मतलब सबका अमाउंट ड्यू है. तो 1, 2, 3 और 4 क्या क्या नाम है सर? AK इंडस्ट्रीज, जुपिटर ट्रेडर्स, VT एंड को और ASD एंड सन्स. ओके, तो आपको एनपीए का क्लासिफिकेशन उन लोगों ने ऑलरेडी करके दिया है. ये D1 में जाते हैं, मैं आपको टेबल दिखाया था अभी, 2500 वाला सब स्टैंडर्ड एसेट उसके ऊपर वाला था. D2 और लॉस. ओके, ये वापस आपको दिखा देता हूं मैं, कोई टेंशन मत लो. आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 24, तो इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग. सेकंड लक्ष्य देना, आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी आंसर्स. आई एम टेलिंग यू अगेन, कॅल्सी घेऊन बसा, आंसर पाहिजे, नुसतं बसू नका. नेटफ्लिक्स चालू नाहीये, यू हैव टू गिव मी कमेंट्स में आंसर्स. तो 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख और 1 लाख का इन लोग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. ओके सर, वो बगल वाला कॉलम कौन सा है? अमाउंट ऑफ प्रोविजन. ये प्रोविजन उन लोगों ने करके रखा है, ऑलरेडी मेड द प्रोविजंस 5, 7.5, 13 मंथ. तो ऑब्वियसली लास्ट वन क्वेश्चन, व्हाट यू ओनली टेल अस कि ये प्रोविजन बराबर है क्या नहीं है. ठीक है, उसके लिए थोड़े पर और भी कुछ उन्होंने एडजस्टमेंट देके रखे हैं यहाँ पे.
The engagement partner has already verified NPA classification. Outstanding amounts as on 31st of March relating to each NPA listed above, except ASD and Sun, जो लास्ट वाला है उसको एक्सेप्ट करके, which are fully secured. एक बार वापस फिर लाइन वापस पढ़ता, पे अटेंशन प्लीज. जो एंगेजमेंट पार्टनर था ना मेन, वो सीए भुवन, उसने ऑलरेडी सब एनपीए क्लास में वेरीफाई करके रखा है और उसने ये बोला है कि ये सबके सब सिक्योर्ड है, वापस सबके सब सिक्योर्ड है एक्सेप्ट द लास्ट वन एएसडी एंड सन्स. ओके. However, पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रोप्राइटर, नेटवर्क कितना है उसका भाई साहब 50 लाख इज अवेलेबल इन अकाउंट ऑफ एएसडी एंड सन्स. कमेंट ऑन द करेक्टनेस ऑफ द अबव प्रोविजन. एग्रीम जो बन रहा है, जो अपना आर्टिकल है, is in dilemma regarding classification of the above accounts as NPA, although these are fully secured or guaranteed. Guide him. सर 3 घंटे में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऐसे लगता है कि हमको ये 2-3 दिन बार पढ़ना पड़ेगा. सर क्या घुमाए क्वेश्चन. तो अगर मैं आपको मॉडल ऑफ द स्टोरी बताऊं, ऑडिट ऑफ बैंक से कर रहे हैं, प्रोविजंस का क्वेश्चन है, तो ये जो अग्रिम भैया है, ये जो अपने आर्टिकल है उनको गाइड करना है. गाइड यही करना है कि वो डिलेमा में इसलिए क्योंकि उसका पार्टनर क्या बोल रहे हैं उसको, ये फुल्ली सिक्योर्ड है सब, तो प्रोविजन करना है क्या नहीं है वही मालूम नहीं आपने. तो भाई साहब आप मुझे थोड़ा फर्क कुछ कैलसी पे करके बता सकते हैं कि ये बराबर किया है प्रोविजन या नहीं किया. ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस वाज द टेबल. ये आपका टेबल था. लक्ष्य प्लीज सेकंड. अगर सब स्टैंडर्ड असेट है तो 15% शुड बी द प्रोविजन. अगर D1 कैटेगरी में आता है तो 25 और 100, सिक्योर्ड के लिए 25, अनसिक्योर्ड 100 एवरी टाइम. ओके. अगर वो D2 में आता है तो 40% ऑफ द सिक्योर्ड अमाउंट और 100% ऑफ द अनसिक्योर्ड छोड़ दो. और D3 में आता है वो तो 100%. तो भले भले आपको मोटा मोटा ये और ये लर्न करना है. ठीक है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन, अभी आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए. एवरीवन फास्ट लवकर. सबके सब सिक्योर्ड है सिवाय वो लास्ट वाला एएसडी वाला. बट एएसडी वाले पे भी क्या बताया उन लोगों ने कि जो प्रोप्राइटर है उसका यहाँ पे पर्सनल गारंटी देके रखे. कितने लाख का? 50 लाख. तो आप बताएंगे कि वो कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या आंसर के ऊपर? मतलब बैकिंग तो है पैसों का प्रोप्राइटर का. तो वेदर आई कैन कंसीडर दैट बाय डूइंग अ प्रोविजन. यस और नो? यस और नो? क्वेश्चन बहुत ही भारी है, आपका आंसर चाहिए मुझे. लाइक डू एनीथिंग, जस्ट गिव मी आंसर. बट सर एके इंडस्ट्रीज का इतना प्रोविजन होना चाहिए और हमारे हिसाब से उन लोगों ने जो प्रोविजन किया है वो बराबर या नहीं है. मतलब आपको जो आपके आंसर आएंगे ना वो इससे आपको क्रॉस चेक करना है, कमी है का जास्त है तुम्हारा एवढंच करायचं. सो प्लीज डू इट फास्ट. ये D1 में आता है. D1 में I've just given you D1 25% and 100%, 25% and 100%. So can we do something like this boss? Can we do something like this? Sir, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका टेबल हो गया. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक चीज है, अगर ये D1 में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ सर. अगर ये 10 लाख है, अगर 10 लाख है तो इसका 25% कितना होगा सर? 2.5. कितना होगा? 2. C. It has been classified as D1. It requires provision of 25% of the secured amount. That is provision of 2.5 lakhs. सर अपन सर तुमने पूरा का पूरा उसमें क्यों लिया सिक्योर्ड? भैया उसने तो कहा है, इन लोगों ने कहा है कि ये सबके सब सिक्योर्ड है. पर अगर सिक्योर्ड भी रहेंगे तो तुम प्रोविजन नहीं बनाओगे क्या सर? ऐसा नहीं होता सर. अगर सिक्योर्ड भी है, हाँ सिर्फ परसेंटेज का प्रोविजन कम होता है तो सिक्योरिटी है सर. तो आपको 25% निकालना पड़ेगा. तो 10 लाख के ऊपर 25% कितना होता है? 2.5 लाख होता है. और इन लोगों ने कितना प्रोविजन करके रखा है? 5 लाख. तो क्या बराबर है? क्या बराबर नहीं है. तो आप क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे? आंसर सर अगर D1 कैटेगरी है, अगर ये पूरा सिक्योर्ड है, दैट इज प्रोविजन ऑफ 2.5 लाख should be made instead of how much? 5 lakh. Did you get? ये आपके दिमाग में गया क्या? मुझे जल्दी बताएंगे yes or no. Did you understand 2.5 lakh? And did you understand? तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? Sir, the provision made by them is not proper, is not as per the regulations. Did you get this? Yes or no? Did you get this? Yes or no? First, क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया क्या? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे then we'll go ahead. एक बार कंफर्म करेंगे then we'll go ahead. Okay? एक ही का समझ में आया तुमको? एक ही का? एक ही all okay? So okay, now next is what? Next is what? Sir, Jupiter traders. The Jupiter मतलब substandard asset है, substandard asset. 50 लाख यहाँ पे लिखा है, तो मुझे बताएंगे कितना कर सकते हैं आप? What you can do? Sir, 50 लाख के ऊपर 15% है. अभी जो टेबल बताया आपने, टेबल वापस बताओ कि आपको 15% is straight away. तो 15% कितना आता है? 7.5 लाख आता है. और मेरे हिसाब से उन लोगों ने ऑलरेडी 7.5 लाख करके रखा है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? Therefore, provision made by branches for correct. तो कुछ ऐसे में ये नहीं है. 7.5 लाख तुमने आंसर निकाला, उन्होंने भी 7.5 लाख से निकाला. चलो, कैन वी कम टू थर्ड वन? सर थर्ड वन D2 में आता है. D2 में ओके. तो D2 में कितना रहेगा सर? 40% और 100%.
100% का बात ही नहीं करेंगे हम, बिकॉज सबके सब सिक्योर्ड है। तो 30 लाख पे 30 पे इंटू 40% कितना आना चाहिए सर? 12 लाख का प्रोविजन होना चाहिए, 12 लाख का। अरे भैया इन लोगों ने कितने का प्रोविजन किया है? 30 लाख का करके रखा है, तो बराबर है क्या? नहीं सर बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है सर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सर, क्या देखो ये हो गया, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज D2, खुद ही बोला है उन लोगों ने, इट रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ 40% ऑफ सिक्योर्ड अमाउंट। तो 12 लाख का होना चाहिए, उन्होंने 30 लाख का किया, सो इट इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको? चलो, एज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, खूप सोपं आहे, लक्ष द्या सगळ्यांनी प्लीज। अच्छा सर एक और बाकी है सर, ये तो 3 हो गया, अभी चौथा भी बाकी है वहां पे, ओके है, ASD एंड सन्स भी बाकी है। अभी इसमें एक चीज है सर, ये इसमें तो कंप्लीट लॉस लिखा है इन लोगों ने। अरे बट अच्छा लॉस का मतलब क्या मुझे बताओ सर? लॉस का मतलब भाई सर ये पूरा का पूरा किसमें, और बाय द वे और एक बात, ये जो पहले 3 है ना, ये जो पहले 3 है ना, ये पहले 3, ये सबके सब सिक्योर्ड है, ये सबके सब सिक्योर्ड है। सिर्फ जो ये वाला है ना भैया, ये अनसिक्योर्ड है, दिस इज अनसिक्योर्ड, ओके, बिकॉज क्लियर कर मेंशन है वहां पे। बट उन लोगों ने आपको कंफ्यूजन में क्यों डाला पता है क्या? उन लोगों ने ये भी लिखा है भले वो अनसिक्योर्ड रहेगा, बट जो प्रोप्राइटर है उसका बैकिंग है, उसको कितना पर्सनल गारंटी है ते तुम्ही मला सांगा रे, पर्सनल गारंटी काम करणार है क्या तिथं? नहीं मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास रोल्स रॉयस खड़ा है बाहर, ये भी डाल दो उसमें, ऐसा थोड़ी होता है। इट इज नॉट लाइक दैट, सी सो दिस, ये जो लिखा है ना इन लोगों ने, कहां पे गया वो क्वेश्चन, ये हाउ एवर पर्सनल गारंटी ऑफ प्रोप्राइटर 50 लाख रुपए अवेलेबल, इसका कुछ भी ताम झाम नहीं है यहाँ पे, वो ऐसे ही है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? तो भाई साहब अगर वो अनसिक्योर्ड है तो मुझे बताओ, अगर अनसिक्योर्ड है तो कितने का प्रोविजन करना चाहिए? तो 100% करना चाहिए। क्या उन लोगों ने 100% किया है? यस बराबर किया। एक बार आंसर गो थ्रू करते हैं। हाँ, ASD and Sons, it has been classified as a loss asset which requires 100% outstanding amount. Therefore, the provision made by branches correct, 1 लाख कर दिया उन लोगों ने। और तुम लास्ट में वो जो 50 लाख का जो पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन NPA should be based on the record of recovery. Okay. Availability of security or net worth is not to be taken into account for the purpose of treating the advances worth. बराबर है ना? कि आपको क्या किसके ऊपर करना है सर? रिकवरी के ऊपर। रिकवर कितना हो रहा है, ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना है अभी। Hence, these accounts have been classified as NPA on the record of recovery, although these are fully secure or guaranteed. तो 50 लाख इसमें कोई भी रोल होने वाला नहीं है। Has everybody understood this question? Yes or no? Has everybody understood this question? Okay? एक बार वापस बोल रहा हूँ, अगर आउट ऑफ बैंक कर रहे, लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर में एडवांसेस के ऊपर को थोड़ा ये करना है, टॉप प्रायोरिटी देना है, खास करके एनपीए के प्रोविजंस, आपका ड्राइंग पावर, और ये वाले क्वेश्चंस, ओके? Everybody okay till here? चलो, can we go on to next small chapter which is very important, audit report, ठीक है? Pay attention please. Mention some examples of circumstances where the auditor may consider necessary to include EOM। सर ये 700 के सीरीज का बात कर रहे हैं सर। 700 क्या था सर? 700 का ओपिनियन फॉर्म करना। व्हाट वाज 701 सर? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। सर 705 मॉडिफिकेशन और 706 आपके सामने है। दो चीजें थे उसमें से, एक तो एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। जिन लोगों को भी पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो मुझे कमेंट में थोड़ा सा लिख के बताएंगे। सर EOM आप कब डालते हैं और अदर मैटर पैराग्राफ कब डालते हैं? okay? बहुत जन में कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल लाइन लिखता हूं सिर्फ मैं, एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ तभी आता है जब ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिस्क्लोज है। अगर उन लोगों ने डिस्क्लोज किया है एंड यू फील कि नो दिस हैज टू बी एम्फसाइज्ड एंड यू विल पुट इट। What is other matter paragraph which is not disclosed? Which is not disclosed. एक मिनट, ये disclosed in the FS है भाई साहब, ये FS लिखा है, not disclosed in the FS, तब आप other matter paragraph ये हथियार उठाएंगे। This is a very clear cut distinction and a very small distinction between EOM and OMP. Okay? Question तो विचारना नहीं है। Question क्या हुआ अभी देखो। Mention some examples where the auditor may consider necessary to include a EOM paragraph। अभी आप अपने ऊपर हो, आपको कितने एग्जांपल्स देना आप दे सकते हैं। भाई साहब स्क्रीन के सामने है 706। एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे भाई साहब, थोड़ा सा रिवीजन। 700, 701, 705 और 706 मैंने आपको पहले 1 मिनट में बताया। ऑडिट करण्याच्या अगोदर ऐसे लर्न करा, भले एक दिन जाने दो उसमें, पर ऐसे लर्न करो। जो ऑब्वियसली ऑल दोस पीपल जो आपको पता रहेगा ऐसे तुमको लर्न होने चाहिए, ठीक है? We also use some memory techniques and all that, but तुम्हारा ऐसे लर्न पाइए, ठीक है? ये आपका ओपिनियन का बात करता है, ये आपका ओपिनियन का बात करेगा, ये की ऑडिट मैटर का बात करेगा, ये आपका मॉडिफिकेशन का बात करेगा, ये आपका मॉडिफिकेशन का बात करेगा, और ये आपका बात करेगा एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, जो जस्ट मैंने आपको कहा, ठीक है? बिकॉज भैया आपका आंसर भी वहां से शुरू होगा ना।
The moment you write as per essay something, in the examiner will know that you have studied something. चलो, sir, the examples of circumstances with the auditor may consider to include are as follows. तो आपके ऊपर है, अब ये भी लिख सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले an uncertainty related to the future outcome of an exceptional litigation or regulatory action. क्या बात कर रहे हैं सर? डिस्क्लोज तो किया है उन लोगों ने, क्या डिस्क्लोज किया है कि ऐसा ऐसा लिटिगेशन चालू है, बट द ऑडिटर फील्स कि नहीं यार, ये एम्फसाइज करना चाहिए, ये ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए सर, कि भाई साहब इसके फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि इसके किसके फेवर में जाएगा. तो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग लिटिगेशन, significant subsequent event that occurs between the date of the financial statement and the date of the auditor's report. I hope you know the essay of this. इसका essay क्या है, पर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 560 560 subsequent event. तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो 31 मार्च के बाद हुआ है और आपके ऑडिट रिपोर्ट के पहले हुआ है, and you see and you think नहीं ये एम्फसाइज होना चाहिए सर ऑडिट रिपोर्ट में, तो आप वो भी डाल देंगे. Early application of a new accounting standard that is a material effect on the FS. तो कोई नया एएस आया है, आपको वो भी एम्फसाइज करना है, अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू एफआरएस, तो वो भी हाईलाइट कर सकते हैं. एंड अ मेजर कैटास्ट्रोफी, वेरी बिग इवेंट that has or continues to have a significant effect on the entity's financial position. For example, let us say कुछ इनका एक प्लांट बंद कर दिया है, इनके लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लो चालू है, ठीक है, मतलब लॉसेस ही हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आउटडेट हो गया, कोई टेक्नोलॉजी आउटसाइड द मार्केट चली गई है, तो ये कोई भी इवेंट है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. दिस माइट बी योर एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ. ठीक है, चलो, कैन वी गो ऑन टू नेक्स्ट वन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, ठीक है, क्वेश्चन बड़े रहेंगे इसमें ऑडिट रिपोर्ट में, आपको थोड़ा फर्क क्या करना है पढ़ना. ठीक है एवरीवन, CAS while conducting audit of an entity is facing the following issue. देखेंगे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं सर. सबसे पहले he has not been, लक्ष्य देना आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से यू एवरीबडी शुड आंसर इन द कमेंट. ओके, तो CAS को क्या क्या इश्यूज हैं. सबसे पहले he has not been provided with necessary support for attending inventory count process. So you already know one thing यार, there are two stuffs over there, inspection and observation. मैं आपको पहले कहा है inspection का मतलब क्या होता है, first hand information, you go there, you count for your own self. Okay, what is observation, you stand there, you tell somebody else to count. That's observation. Okay, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, अरे यहाँ पे भैया उसको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, ये काउंट करने जा रहा है, बोले काउंट नहीं करने गए, बोले भाई तू काउंट कर, वो भी नहीं बोल रहे. सेकंड, accounts manager is not providing him present address of customers as a supplement for sending external confirmation. अच्छा, external confirmation ऐसे क्या था, तो जहां पे भी ऐसे वर्ड सके मैं आपको ऐसे पूछूंगा. तो external confirmation 505 अपने मेम टेकिंग भी किया था, 505 वाला. ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है, अगर आपको कुछ कंफर्म करना है एक्सटर्नल confirmation का बैलेंस सप्लाईज का ऑर्डर, वो आपको नहीं दे रहा कुछ एड्रेसेस. He was not able to verify revenues of entity due to lack of complete details. He has been asking for bills on sample basis for purpose of verifying expenses. म्हणजे moral of the story, पे अटेंशन. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपने जितना भी कुछ पूछा है, आपने कुछ भी मांगा है उनसे, वो कुछ नहीं दे रहे, बोलो एक्सेस नहीं दे रहे, सप्लाई पे कंफर्मेशन का बात नहीं चालू है, तो सर व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन. आई होप यू नो द आंसर. ओके, द मैटर वाज ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ हायर मैनेजमेंट. कितनी मोटा क्वेश्चन खींचना है, वो एक लाइन में लिख सकते थे, एक लाइन लिख सकते थे, पर अभी देखो क्या किया, क्वेश्चन बहुत बड़ा खींचा है. बट ऑफ नो अवेल, मतलब ये बात जाके मैनेजमेंट को भी कहा आपने, मैनेज मतलब कुछ नहीं करना है मुझे. The auditor CAS has come to a conclusion that the possible effect on the affairs of undetected misstatement would be material and affecting in many aspects. आप ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एविडेंस तो है नहीं, तो चेक ही तो नहीं किया तुमने, तुमको ऐसा लग रहा है जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, तो डिटेक्ट तो किए नहीं तुमने अभी तक, तो ये मटेरियल हो सकते हैं, दिस माइट बी मटेरियल. ओके, ये आपका ओपिनियन है. नाउ, and in such a case the qualification of the opinion would be inadequate compared to the gravity of the situation. How should the auditor proceed in such a situation? Simple answer is sir, एज ऑडिटर दो हथियार है आपके पास. एक, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, सगळं संपून टाका विषय. तर 4 ओपिनियन है, अनक्वालिफाइड वो तो नहीं देंगे हम यहाँ पे. फिर आपका क्वालिफाइड, फिर एडवर्स. क्वालिफाइड और एडवर्स के लिए तुम्हारे पास एविडेंस चाहिए, इधर एविडेंसेस नाही तुमच्याकडे, तो चौथा काय उरलं, चौथा तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. में ओपिनियन देने से ही डिस्क्लेम कर रहा हूं, खत्म. और सेकंड, गलती मानने का, वॉक अवे फ्रॉम द ऑडिट इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल. ओके, वही आंसर रहने वाला है. अब ध्यान देंगे. ओके, सो सबसे पहले if the auditor concludes that the possible effect on the FS of undetected misstatement could be both material and pervasive, if you know अपने chart draw किया था, so that the qualification would be inadequate to understand the gravity of the situation, the auditor shall, सबसे पहले क्या sir, withdraw from the audit. अगर withdrawal possible नहीं है तो आप क्या करेंगे, disclaimer opinion, एक पहले गलती मानने का नहीं बोलेगा, नहीं होने वाला हमसे, withdraw कर देते हैं हम लोग. और सेकंड क्या है, आपको लग रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं,
बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, मुझे विड्रॉ नहीं करना है, तो एक काम करेंगे हम डिस्क्लेम कर देंगे ओपन, ठीक है। इफ द ऑडिटर विड्रॉस फ्रॉम सच एंगेजमेंट बिफोर विड्रॉइंग द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, ऐसा नहीं कि कल के मान कि मतलब गए ऑडिट के लिए और कल के दिन गायब हो गए, फोन बंद करके रखा, ऐसा कुछ करना नहीं, आपको एक बात करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज ऐसे, ऐसे इज 260, ऐसे कौन सा है 260, ऐसे कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यूजी, तो पहले आपको बातचीत करना पड़ेगा सर उससे, और फिर आप क्या करेंगे, कल भी मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब इसके दो आंसर है, इसके दो आंसर है, एक विड्रॉ, सेकंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक चीज है, विड्रॉ करने से पहले आपको पहले कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यूजी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यस और नो? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? चलो भाई साहब तुम्हारा कारो आगे देखो, लक्ष्य प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, every question is important, every question is important, every question is different and unique, please pay attention. आणि हे सगळे प्रश्न पडलेत, हे सगळे आहेत तसे मी कंपाइल फक्त केलेत. दिस इज अ व्हरायटी ऑफ एव्हरीथिंग, ओके, पे अटेंशन. और मैंने चैप्टर वाइज किया सब कुछ, ठीक है. डिस्कस द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर कारो रिगार्डिंग कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ओके. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कारो इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एज अ ऑडिटर हमको सिर्फ उसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये किया है क्या, ये नहीं किया है क्या तुमने. कारो में भैया दो पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था मैंने. इसमें आपके 21 क्लॉजेस है, इसमें आपके दो क्लॉज है, मेरे हिसाब से आपको ये पता है कि आपने बहुत बार क्लास में किया है, ठीक है. अभी क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ है देखो, सेकंड प्लीज लक्ष्य दें. डिस्कस द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर कारो रिगार्डिंग स्टैट ड्यूज और ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी. तो 21 का 21 पूछा क्या वहां पे? नहीं सर, नहीं पूछा ऐसा. क्या पूछा आपको? स्टैट ड्यूज का पूछा है. एक बार डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर. स्टैट ड्यूज का मतलब क्या है सर? पीएफ का बात कर रहे हैं. पीएफ होगा, ग्रेचुइटी होगा, जो आपको कंपलसरी पे करने पड़ते सरकार. तुम्हें एम्प्लॉय से तो काटा है, तो उसको देना पड़ेगा ना, तो तुम तुम्हारी जेब में रखोगे. तो मेक श्योर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग नहीं है. अगर आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे वो. अच्छा, और एक बात है, अगर लिटिगेशन भी चालू है कहाँ पे, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. से प्रोविडेंट फंड का कुछ बात है, कंपनी बोला 3 लाख रुपए देंगे, एम्प्लॉय बोला नहीं 3.5 लाख रुपए देना है, तो केस लड़ गया, लिटिगेशन में आ गए. लिटिगेशन के समय आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन से फोरम में लिटिगेशन चालू है. ये कारो का रिक्वायरमेंट, ठीक है. चेक करेंगे अपन एक बार आंसर. पे अटेंशन प्लीज. सबसे पहले वी डूइंग स्टैट ड्यूज, ओके, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया. विद द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट, अनडिस्प्यूटेड जिसके ऊपर लिटिगेशन चालू नहीं है, एकदम क्लियर कट, पैसा काटना आपको सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद, and if not, the extent of the arrears of outstanding stat dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. 6 महीना हो गया है उस डेट को, 6 months that thing is outstanding. ये तो कंफर्म इसमें आने वाला है कारों में, ठीक है. समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले आपको एक चेक करना पड़ेगा कि भाई अनडिस्प्यूटेड ड्यूज जितने भी रहेंगे वो प्रॉपर्ली वो डिपॉजिट कर रहे क्या. और अगर ऐसे कौन से अरियर्स है, आउटस्टैंडिंग कुछ ड्यूज है, तो 6 मंथ्स हो गए हैं, तो वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ओके सर. सेकंड, when stat dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute. सर, ये अनडिस्प्यूटेड म्हणजे स्टैंड लिटिगेशन चालू नहीं है, और अगर कंपनी बोल रहे हैं नहीं इस पे डिस्प्यूट चालू है, कोई बात नहीं. अगर डिस्प्यूट चालू है ना, तो हमको ये बताएंगे कि कौन से फोरम में चालू है, कौन से कोर्ट में चालू है, तो आपको ये भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. भाई साहब इसके ऊपर नीचे क्वेश्चन में पूछा है उन लोगों ने और, ठीक है. पे अटेंशन. तो ये हो गया आपका स्टैट ड्यूज का. उसके बाद रिलेटेड पार्टीज सिंपल है. तो एक चीज में आपको कंफर्म करना पड़ेगा, जब भी रिलेटेड पार्टीज का आता है तो आपको 188 फॉलो करना पड़ेगा. वो फॉलो किया है कि नहीं हमसे उतना लिखना है उसको, ठीक है. The all transaction with related parties in compliance with 177 or 177 by the audit committee and 188 is related party transaction where applicable and details have been disclosed in the FS. रॉकेट साइंस ने आपको सिर्फ दो सेक्शन मेंशन करने हैं कि क्या कंपनी ने वो कंप्लाई किए हैं क्या नहीं. 177 is audit committee and 188 is related party. ये सेक्शन तुम्ही फॉलो केली आहेत का नाही कंपनी ऍक्ट, एवढंच तुम्हाला फक्त इथं सांगायचं. ओके, सिंपल. कैन वी गो अहेड प्लीज. अच्छा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन. किरण, a CA student, was reviewing an audit report of the company when she noticed an 18-digit alphanumeric code below the auditor's signature and membership number. She wants to understand the purpose and importance of the randomly generated number as unique code. I hope आपको पता है कि इसका मतलब क्या है. This we're talking about UDIN, okay? तो obviously पहले क्या होता था, बहुत सारे जो non CAs है, they used to go and forge the signature of the CAs and they used to stamp on that, okay? That is why these guys came out with this UDIN. UDIN का ये है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूडिन का पूरा एज इट इज लिखा होगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन, ओके. तो ओनली थिंग यू शुड गेट दिस कांसेप्ट, आपको कांसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये यूडिन का कांसेप्ट, ठीक है. चलो नेक्स्ट,
दिस इज 710 एकदम रिसेंटली आपने किया था 710, ठीक है। तो तीन चीज का बात करेगा ये, आपका इंफॉर्मेशन, योर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड योर फिगर्स। ओके, पे अटेंशन प्लीज। चलो, नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन एन एंटिटीज एफएस डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल एफआर। There are two different broad approaches to auditors reporting responsibilities in respect of such comparative information, figures and comparative financial statements. प्लीज लक्ष्य दिया, 710 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी है। comparative information, corresponding figures, and comparative FS. Okay, explain clearly the difference between the approaches stating the essential audit reporting. Also define comparative information and audit procedures regarding comparative information. सर हम लोग का अप्रोच क्या रहना चाहिए इसमें सर? आपको एक ही चेक करना पड़ेगा whether these guys are consistent. जो लास्ट टाइम का था वही इस बार फॉलो किया गया ताकि कंपेयर कर सके आप। समझ में आ रहा है आपको? The essential audit reporting differences between approaches are और corresponding figures। देखो भाई साहब, फिगर्स के लिए मैं सिर्फ इसी साल में कंसीडर करूंगा जो इस साल के बैलेंस शीट के फिगर्स है। आई विल बी concentrating on that, not the earlier figures। देखो, the auditor's opinion on the FS refers to only current period only when it comes where corresponding figures। देखो, whereas for comparative financial statement, the auditor's opinion refers to each period for which FS are present। एक बार वापस, सिर्फ फिगर्स के लिए सिर्फ करंट पीरियड का ही आपको लेना पड़ेगा ओपिनियन, और एफएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने रेफर किए उसके लिए आपके ओपिनियंस मायने रखने वाले हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछा था उन लोगों ने कि डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन द एफएस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ओके, दैट इज योर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, सिंपल। So audit procedures, the comparative information agrees with the amounts same as the other। For example यार, लास्ट अगर लैक्स में लिखा है तो इस बार भी लैक्स में होना चाहिए। लास्ट में लैक्स में, इस बार थाउजेंड्स में है, और शेयर होल्डर पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है यार, लास्ट में लैक्स में ज्यादा थाउजेंड कैसे है। कंपेरेटिव होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आर डैश कंसिस्ट होने चाहिए with those applied in the current period, or if there have been any changes in the accounting policies, because those changes have been properly accounted for। अगर accounting policy change की है तो ये जो चेंज हुआ है वो पहले मैनेजमेंट एक्सेप्ट भी करना चाहिए और आपको वो एक्सेप्टेड चाहिए। ठीक है, और वहां पे लिखना भी चाहिए कि तुमने वो पॉलिसी चेंज क्यों की है। एक ही चीज आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर, चेंज हुआ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, गेटिंग दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, प्लीज लक्ष्य दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CAK is a stat auditor of DEMA Private Limited for the year 22-23. The company has 3 plants in India. He is nearing completion of an audit procedure relating to financial statements of the year under audit and is yet to sign the audit। I will sign the boss। Meanwhile, a huge fire had broken out in one of the plants of company located near Nashik on 25th June 23। आपको इस मतलब पढ़ने से ही समझना चाहिए वो कहाँ पे आपका क्वेश्चन जा रहा है। Damaging substantial part of machinery and the working process resulting in loss of about 5 crore। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, 31 मार्च के बाद तुमने आपका ऑडिट शुरू किया, ऑडिट कर रहे हो, उसके बाद अपने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं हुआ, उसके पहले ही कोई ऐसा इवेंट हुआ है और वो बहुत सब्सटेंशियल। Unaware of this incident, he is in process of finalizing his report in first fortnight of July 23। State the few audit procedures to be performed by him to obtain sufficient appropriate audit evidence for identifying such events। Also explain auditor's responsibilities in this situation। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से ऐसे के बारे में बात करें? Anybody? Which essays are these people talking? Which essays are these people talking? Anyone who can tell me the answer first? सर एक तो 560 का बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट में। अच्छा, और एक बात है, आप जब ये प्रोसीजर्स करेंगे तो एक चीज है, आप डिस्कशन के लिए बैठेंगे किसके साथ, मैनेजर के साथ, तो इसमें 580 भी आएगा आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आप उनसे लिखवा के लेंगे कि प्लीज टेल मी दिस इज द लॉस एंड एवरीथिंग। देखो आंसर, इन द गिवन सिचुएशन a huge fire had broken out in one of the plants of company on 25th June 23, destroying substantial part of machinery and working process। और कितना लॉस होगा? 5 करोड़ का। The auditor has yet to sign audit report। Now, before signing the audit report, he should perform following audit procedure to obtain what? SAAE। आपको पहले कहा मैंने sufficient appropriate audit evidence। What is the meaning of sufficient? Quantity। What is appropriate? Quality। Okay? तो ये उसको गैदर करना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई साहब? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले मैं इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन ऑकर्ड। ठीक है, अगर ये फायर के बाद उसको पता भी नहीं है तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? टेल अस एनी ऑफ द इवेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस आफ्टर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट, दैट इज 31st of March।
यहाँ पे लिखा है कि उसको पता नहीं था, तो ये आपसे पूछ रहे कि आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है सर, इंक्वायरी करने का मैनेजमेंट से। सेकंड, reading the minutes of the meeting of owners management that have been held after the date of FS, ये भी एक obviously स्मार्ट मूव है। तो अगर आपको पता करना ही है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग जाके चेक कर लो, बोर्ड मीटिंग के मिनट चेक कर लो, तो उसमें भी आपको कुछ समझ में आएगा, हाँ वो ये इवेंट हुआ था, मुझे पता नहीं था, और ये 31 मार्च के बाद हुआ था। नेक्स्ट, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको शायद से मैंने क्लास में कहा था, समथिंग कॉल्ड एज अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन एलआर बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू। ओके, तो रिमेंबर अगर कुछ ऐसे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाहर हुए इंटरिम वाले, तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कुछ समझ में आएगा। एंड ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ध्यान है, अगर आपका ध्यान है तो आपको ये वाला आंसर बुक में लिख सकते हैं कि भैया आप क्या क्या कर सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट जानने के लिए। तो सर सब्सिक्वेंट इवेंट जानने के लिए सबसे पहले मैं तो इंक्वायरी करूंगा, आई विल डू इंक्वायरी। सेकेंड, सर मैं मिनट्स पढ़ूंगा मीटिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर कुछ इंटरिम रिजल्ट्स बाहर आए हैं मैं वो भी चेक कर लूंगा, इंटरिम रिजल्ट्स दैट आल्सो आई चेक। एंड लास्ट में आई विल ऑब्टेन व्हाट 580 दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, ताकि मैं उनसे ही पूछूंगा। अगर वो बोल रहे कि नहीं, मना कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं, तो जो भी बोला वो लिख के दे मुझे। फिर अगर आपको आप बोल रहे हो ना कि कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, कोई बात नहीं, यू प्लीज राइट इट एंड गिव इट टू मी। सो ये आपके आंसर है। Situation is an example of subsequent event occurring between the date of FS and the date of audit report requiring disclosure in the FS. The auditor has a responsibility to obtain SAAE whether such an event requiring disclosure of FS is appropriately reflected in FS. मतलब आपको एक ही चेक करना है कि whether all these events are reflected in the financial statements or not. Okay? ये वाला आंसर कभी भूलो मत, अगर आपके पास कुछ स्टिकर वगैरह है तो ये वाले लिख सकते हैं, यही पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, पे अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट, Kundan, a CA student, is a part of an engagement team, okay, conducting audit of an entity. The audit procedures are nearing completion. He notices that the engagement partner has asked for a cash flow forecast from management for next 12 months. From the date of FS, keeping in view above, answer the following. एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। सर कुंदन करके एक सीए स्टूडेंट आर्टिकल कर रहा है सर, इज अ पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम, इज कंडक्टिंग ऑडिट एंड ऑल दैट, और खत्म होने को आए कंप्लीशन। he notices that his partner जो सीए वो पूछ रहा है कि कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द मैनेजमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नाउ discuss likely purpose of engagement partner in the above situation, elaborate upon significance of such testing being performed by engagement partner, state any two audit procedures in relation to cash flow forecast likely to be performed by the engagement partner. Okay, तो ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया रहेगा तो शायद से आप 3 घंटे में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या पूछे सर, खत्म होने को आया ऑडिट, पर लास्ट में क्या पूछा उन लोगों ने कि सर एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या पूछा है, कैश फ्लो फोरकास्ट पूछा है। तो सी व्हाट इज द आंसर, पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। कैन आई से वन थिंग सर, इसलिए उसने पूछा रहेगा ताकि उसको कुछ डाउट आ रहा है किसके ऊपर, 570 के ऊपर, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो रिमेंबर वन थिंग, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत बार रिपीट हुआ ऑडिट में। अगर आप कारो भी चेक करेंगे, कारो में भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन बहुत बार मेंशन किया उन लोगों ने। ठीक है, अब सी पे अटेंशन सर, अभी इसलिए मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देयर इज नोवेयर इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशनड गोइंग कंसर्न, नोवेयर, यू हैव टू फाइंड इट आउट। सी इन द given situation, the engagement partner has asked for a cash flow forecast for the management the next 12 months, the date of financial statement. The audit procedures are also nearing completion. Therefore, the purpose of the engagement partner requiring cash flow is to obtain evidence and SAAE and to conclude an appropriateness of management use of going concern. म्हणजे यहाँ प्रश्नाचा मेन मुद्दा क्या है भाई, कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को ये चेक करना था कि इसका अगला फोरकास्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों मांगा है इसको, चेक करना है इसको कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है क्या नहीं। अगर है तो ये क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा भाई। The significance of testing going concern assumption is due to its effect on the preparation of FS. When the use of going concern is appropriate, assess liability recorded on the basis the entry will be able to realize assets. In case it is not so viewed, FS are prepared on liquidation basis, because अगर ऐसा आपको एक भनक भी लग गया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो आपका पूरा का पूरा एफएस चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। Hence, testing such an assumption provides evidence to auditor whether use of such assumption is appropriate or not.
दैट इज द रीजन उसके एंगेजमेंट पार्टनर ने उसको क्या मांगा, 12 मंथ्स का कैश फोरकास्ट मांगा, ठीक है। तो टू ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या, व्हाट इज ये, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा। ऑब्वियसली अगर सी रिमेंबर वन थिंग, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि नहीं 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 गोइंग कंसर्न वैलिड तो नहीं है, हम तो बंद पड़ने वाले 6-7 महीने में, बट प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ऐसा कुछ बना के देगा ताकि आपको उसका ये हो सके कि नहीं नहीं तो बराबर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, you have to evaluate the reliability of the data which they have given it to you. Second, determine whether there is adequate support for assumptions underlying the forecast. क्या हमको अगले साल में अगले मंथ में 2 करोड़ रुपए मिलेगा, अब भी अगर कैश फ्लो चेक करें तो 1 लाख रुपए भी नहीं है उसमें, लोग क्या बोलते हैं 1 करोड़ मिलेगा, नहीं भाई। तो सबसे पहले जो assumptions लगे ना उन लोगों ने, वो आपको चेक करने पड़ेंगी बराबर है कि नहीं। दो चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी इसके तौर पे। सर ऑडिट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य दिया। सेकंड, पहला इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी, भरोसा डेटा के ऊपर, और सेकंड जो assumptions किए उन लोगों ने वो तुमको बराबर लग रहे हैं कि नहीं। डिटरमाइन वेदर द एडिक्वेट सपोर्ट फॉर assumption, मतलब assumption साठी जर तुम्ही काय विचारता है, कोई बेसिस है, कोई ग्राउंड से assumption किया वो बराबर है कि नहीं, वो तुम चेक करो। समझ में आ रहा है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पे अटेंशन। कैन वी गो ऑन टू नेक्स्ट दिस। सीए मनोज इज अ स्टैट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। बाय द वे सब चैप्टर्स में मिक्स है, लाइक सम आई हैव गिवन देम नेम्स और सम उसमें कंपाइल हो गए, ठीक है। CA Manoj is a stat auditor of a company. He has completed the audit and issued the audit report dated 30th June 24. Okay. Now, before signing the audit report, WR dated 29 June 24 were obtained from the management of the company. Okay, question बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ये टाइप वाला क्वेश्चन। Discuss the significance of the data of WR. Also state whether the WR obtained on 29 June is appropriate or not. Sir, एक मिनट, पूरे क्वेश्चन में हमने WR सुना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ऐसे 580, हमको पता है ऑलरेडी, अभी लिखा है आप यहाँ। सर ये क्वेश्चन का मतलब क्रक्स क्या है सर, क्या बात कर रहे हैं लोग? अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो आपको झेप रहा है। कंप्लीटेड द ऑडिट एंड इश्यूड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन 30 जून, 30 जून 24 को ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो गया था। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया गया था और वो 29 जून को था, 1 डे बिफोर। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपका ध्यान है आप मुझे आंसर दे पाओ, ठीक है। क्वेश्चन ये मेरा, एज अ ऑडिटर जब मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूं, यहां पे मैं टाइमलाइन बना रहा हूं, ये मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एंड डेट है, डेट से 31 मार्च 24 बराबर। इसके बाद मैंने मेरा ऑडिट प्लान किया मैंने, एंड लेटर से 1 नवंबर 24 को मैंने मेरा ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, ठीक है। अभी पॉइंट ऐसा हुआ, जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट दिया, इसके बाद लेटर से ऑन 1 दिसंबर 24 को मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिया। ये टाइमलाइन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इज बराबर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस टाइमलाइन इज बराबर? इस टाइमलाइन में क्या क्या हुआ? 31 मार्च को आपका बैलेंस शीट खत्म हो गया, फाइनलाइज हो गया, आपने ऑडिट शुरू किया, प्लानिंग किया, सब कुछ ऑल हुए, डॉक्यूमेंटेशन किया, एविडेंस आया, ऑडिट रिपोर्ट भी इश्यू कर दिया, तो तब 1 नवंबर। उसके बाद तुमने क्या कर दिया कि नहीं यार तुमको कुछ कंफर्मेशन चाहिए थे, तो तुमने जाके वापस तुम गए कंपनी में और तुमने मैनेजमेंट को कहा कि काम करिए, ये WR पे लिख के दे, सब लिख के भी दिया उसने। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट के पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? व्हाट इज एक्सेप्टेबल, बिफोर और आफ्टर? गिव मी आंसर फास्ट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बिफोर वाले वैलिड है कि आफ्टर वाले वैलिड है? आंसर अभी की अभी चाहिए फास्ट। बिफोर वाले वैलिड है कि आफ्टर वाले वैलिड है? एवरीबॉडी, बिफोर वाले वैलिड है कि आफ्टर वाले? मतलब can I go and take the written representations after my audit report? Is it okay if I take? Is it okay? So tell me one thing, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या मैं इसके पहले ले सकता हूं? क्या मैं इसके पहले ले सकता हूं? सर बिफोर ही लेना पड़ेगा ना आपको। सर क्या सेंस ही बनता नहीं है सर, देयर इज नो सेंस ओनली। हाउ विल आई टेक आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट? प्लीज टेल मी, कुछ सेंस बनता है क्या? मतलब पूरा ऑडिट रिपोर्ट खत्म करने का, ओपिनियन देने का, एंड देन यू गो बैक टू कंपनी अगेन। सो अब सुनेंगे यहाँ पे, आता तुम्ही मला एक सांगा, जो इस बंदे ने किया है सीएम मनोज ने, वो बराबर है क्या गलत? सर हमको तो बराबर लग रहा है सर। 30 जून को रिपोर्ट गया है और 29 जून को डब्ल्यू लिया उसे, तो 30 जून से पहले तो है ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सुनो,
So in the given situation, CA Manoj obtained WR dated 29th of June from the management company before signing. So above it can be concluded that WR has been obtained appropriately. मैंने आपको इतना कहानी क्यों बनाया ताकि आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे परफेक्ट दे सके. See, ये टोकन टाकून दिया, वो आपको बहुत घुमाएंगे वहां पे. सिर्फ इतना चेक करने के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेट इसके बाद नहीं होना चाहिए, बस सेंस ही बनना नहीं है कुछ, उसके पहले ही कभी भी रहने दो. पर हाँ, इट हैज टू बी वेरी नियर एज वेरी प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं कि एक साल पहले लिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट उसके बाद गए, नहीं. क्या लिखा है यहाँ पे, सी लक्ष्य देना प्लीज. The return representation are dated as near as practicable, but not after the date of auditor's report. क्या लिखा है यहाँ पे, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, एकदम भाई नजदीक नजदीक होना चाहिए, एकदम पुराना भी नहीं चाहिए हमको. अरे उसके वजह से बहुत कुछ हो सकता है सर. एक मिनट, क्वेश्चन का आंसर हो गया, बट मैं आपको थोड़ा सा कुछ बोलता हूँ, सुनो. उन लोगों ने नियर एज प्रैक्टिकेबल क्यों बोला, नियर एज प्रैक्टिकेबल. you tell me one thing, you tell me one thing, you tell me one thing. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब दिया, लेट अस से ये दिया इन लोगों ने 1 अप्रैल 24 को, इमीडिएटली आफ्टर योर बैलेंस शीट, और तुमने भाई साहब 1 नवंबर 24 को क्या दिया, ऑडिट रिपोर्ट दिए. अरे बीच में बहुत कुछ हो सकता है यार. तो इसलिए एज पर एसए 580 वो क्या बोलते हैं कि भाई इतना पुराना भी मत लो, ट्राई टू मेक श्योर कि तुम लोगों ने क्या किया, एकदम नियर वाला लिए. दैट इज व्हाई देयर इज अ वर्ड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल. समझ में आ रहा है. तो वो इतना लिख सकते थे ना कि सिर्फ बिफोर ऑडिट रिपोर्ट ले लो, नहीं भाई वो वर्ड लिखा नहीं उन लोगों ने, वो नियर एज प्रैक्टिकेबल लिखा है. समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी. चलो कैन वी गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 60 on the screen. While conducting audit of BYN Limited, CAY notices that company has lost one of its key markets along with important customers. देखो अभी. Additionally, several highly successful competitors have emerged, impacting the business of the company. I hope you know where the question is going. क्या बात किया सर, जब ऑडिट चालू था, जो ये अपनी जो भैया है CAY, उसने क्या देखा, इसने ये देखा कि यार इनका जो बड़ा कस्टमर था वो निकल गया. एडिशनली बहुत बड़े कॉम्पिटिटर आ गए इस धंधे में. Despite the existence of multiple uncertainties, CAY finds the use of going concern basis of accounting appropriate for preparation of FS. तो अगर going concern assumption valid नहीं है, तुमको liquidation basis पे accounting करना पड़ेगा. तो अभी क्वेश्चन क्या है, the company has also disclosed material uncertainty in notes to accounts adequately. How should he deal with the matter in the auditor report? परत एकदा सांगतोय, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो. जस्ट बिकॉज वहां पे गोइंग कंसर्न लिखा एकदम भाई से एक्साइटमेंट हो जा रही है, मुझे पता है ये ऐसे 570 है, ऐसा कुछ भी मत करो. क्वेश्चन मैंने काय विचारले बघा, लास्ट में ट्विस्ट पे क्वेश्चन लोगों ने, हाउ शुड द ऑडिटर डील विद दिस मैटर इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट. अरे भाई साहब कंपनी ने उनका काम कर दिया है, कंपनी को भी समझ में आया है कि बांबू बैठने वाला है, कॉम्पिटिटर आ गए हैं, मार्केट कोलैप्स हो गए हैं, कॉम्पिटिटर अपना कस्टमर निकल गया है, तो उन लोगों ने बराबर ही डिस्क्लोज किया है. अभी तुम्हारी बारी है, तुम कहां पे डिस्क्लोज करोगे, ये क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, व्हाट यू विल डू, सी as per 570 going concern, if adequate disclosure about the material uncertainty is made in the FS, the auditor shall express an unmodified opinion and the auditor's report shall include a separate section under the heading material uncertainty related to going concern too. तो आपको एक मस्त चकाचक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. ताकि आप क्यों लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आप स्टेक होल्डर का, शेयर होल्डर का, यूजर्स ऑफ योर ऑडिटर रिपोर्ट का ध्यान खींचो उस लाइन के ऊपर. तो ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द FS that discloses such matter, because देखो भाई साहब समझो तुम्हारा, मैनेजमेंट ने ऐसा किया नहीं है कि डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज किया मैनेजमेंट. आपको सिर्फ उनका ध्यान वहां पे खींच के लेके जहां पे FS में मेंशन किया है. State that these events or conditions indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern, and that the auditor's opinion is not modified in respect of the matter. समझ में आ रहा है, मतलब ठीक है ना. अगर वो डिस्क्लोज नहीं करे तुमको करना पड़ता, जब डिस्क्लोज किया है तो आपको उनका ध्यान कहां पे लेके आने, वहां पे लेके आना था. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अगेन 570 गोइंग कंसर्न को बहुत बार पूछा गया. During the audit of a company, CA Karthik has noticed that the company's turnover has fallen drastically as compared to last 3 years. The company is in need of funds for new product. Which additional audit procedures need to be performed by CA Karthik in accordance with SA 570? क्या क्या करना पड़ेगा सर? तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग,
अतः ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन 570 का, ये आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बोला उन्होंने, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले, where management is not yet perform an assessment of the entities of the going concern, requesting management to take assessment। अरे अगर तुमको एक मिनट में समझ में आ रहा है, अरे यार गोइंग assumption वैलिड है ही नहीं इसमें, इतने इवेंट हुए और इन लोगों ने कुछ असेसमेंट भी किया नहीं है, तो सबसे पहले आप शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले आपका आंसर शुरू होगा, अरे भैया तू असेस तो कर पहले। सेकंड, evaluating management's plan for future action in relation to its going concern assessment, whether the outcome of this plan is likely to improve the situation। मतलब भाई तो असेस करेगा तो कुछ तो प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो प्लान ऑफ एक्शंस का मतलब क्या है कि कैन यू ओवरकम दिस गोइंग कंसर्न, क्या तुम कुछ टर्न अराउंड कर सकते हो क्या, तो आप उनको पूछ रहे हैं। Whether entity has prepared a cash flow forecast and analysis of the forecast is a significant factor in considering the future outcome events। मतलब आप ये भी पूछेंगे ना तो ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि कैश फ्लो का फोरकास्ट दो, तुम्हारे हिसाब से क्या है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। क्या दो चीजें, तो याद रखो, तो तुम्हारा ध्यान देगा तो ये आंसर दे पाओगे, तो यहाँ पे वही है। इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, जो ऊपर के क्वेश्चन में था। अरे देखो ना, जब कोई फोरकास्ट करता है, जब कोई प्रेडिक्शन करता है, तो उसके लिए जो ग्राउंड्स है ना, जो बेसिस है, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अरे फोरकास्ट करने में क्या जाता है, हाँ 10 करोड़ होने वाला है, 15 करोड़ होने वाला है, तो उसके लिए ग्राउंड बराबर चाहिए। तो एज अ ऑडिटर तुम्हें दोनों गोष्टी बघना, जो डेटा भी है ना वो रिलायबल है क्या नहीं है, एंड सेकेंड कि वेदर देयर इज अ सपोर्ट फॉर द assumptions। ओके, ये ऊपर भी था, ठीक है। Considering whether any additional facts or information have been become available since data management made this assessment, actual facts information मिलेगा तुमको। Then requesting WR from management and where appropriate with TCWG regarding the plans or for future actions। मतलब भाई कुछ नहीं है, तुमको टेंशन नहीं है, तुम सीधा बोल के भाई लिख के दे मुझे सब कुछ। ऐसे 580 will come to your rescue, you will tell him। क्या आपको लगता है क्या you will come around, तुम टर्न अराउंड करेंगे बाद में, कोई बात नहीं, लिख के दो मुझे। Because see, these are your audit procedures as an auditor, you should do all these procedures in regards to SA 570। everybody okay till here? Everybody okay till here? Next, audit documentation। audit documentation, I hope ये क्वेश्चन खत्म होने को आ रहा है। पे अटेंशन, ऐसे 230 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज जरा पे अटेंशन, शायद से आपने मुझे कल कोई क्वेश्चन पूछा था। ओके, ऐसे 230 में देयर इज वन क्वेश्चन जस्ट कमिंग अगेन एंड अगेन। ओके, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू, पे अटेंशन प्लीज। Rajini, a CA student, has understood that SA 230 requires auditor to prepare audit documentation on a timely basis। Obviously, अरे audit documentation का मतलब क्या है सर? जो भी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जो भी प्रोसीजर्स कर रहा हूँ, आई नीड टू डॉक्यूमेंट इट, आई नीड टू कीप इट, इट माइट बी इन अ फाइल और इट माइट बी इन दिस कंप्यूटर आल्सो, बट आई नीड टू कीप इट। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या मैं ऑडिट के बाद डॉक्यूमेंट करूंगा? तो मैंने 7 महीने ऑडिट किया, 7 मंथ्स है ऑडिटेड, एंड आफ्टर द एंड ऑफ 7 मंथ मैंने ये सोचा कि चलो अभी एक काम करते हैं, चकाचक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, मस्त फाइल्स बनाते हैं, यहाँ पे चलेगा कैसा? नहीं यार, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज एन एक्टिविटी ऑन टाइमली बेसिस, वो टाइम पे होना चाहिए भाई। हाँ, लास्ट में तुमको असेंबल करना है सब कुछ, वो वर्ड अलग है, समझ में आ रहा है आपको? चलो, while reading about SQC1, she notices that time needed for completion for final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report। She finds it to be puzzling, unable to comprehend, she seeks your guidance, please guide her। आपको पूछ, आपको कंफ्यूज नहीं होने का, टीम का समय तुम्हाराच कळणार आहे काय आम्हालाच माहिती। सुनो अभी ध्यान दो। SA 230 requires the auditor shall prepare audit documentation on dash basis, timely basis, आपको मैं just बताया अभी। Preparing sufficient appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of the audit, the effective review and evaluation। SQC1 standards and quality control, however, requires auditor to complete assembly of final audit file not more than 60 days after the date of auditor's report। एक चीज दिमाग में डाल के रखेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग बात है, एंड असेंबली ऑफ द फाइनल फाइल वो अलग बात है। सबका ध्यान यहाँ पे प्लीज, एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। सी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिस मस्ट बी ऑन टाइमली बेसिस, ये लक्षण है सगळ्यांनी प्लीज, ये टाइमली बेसिस होना चाहिए। एंड सेकेंड, अगर मैं असेंबल का बात कर रहा हूं, असेंबल का बात कर रहा हूं, असेंबल योर ऑडिट फाइल, असेंबल ऑडिट फाइल एज पर SQC1, ये कब होगा सर? विद इन 60 days, 60 days or from 60 days from ऑडिट रिपोर्ट, बराबर है ना भाई? ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद मुझे सिर्फ क्या करना है? असेंबल करना है सब कुछ, ये 60 दिन के अंदर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का बात नहीं चालू यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस में होना चाहिए। देखो,
Don't get confused in those two concepts. The completion of the assembly of the final audit file after the date of auditor's report is only an administrative process, a mechanical process. Therefore, auditor shall prepare documentation on a timely basis. Therefore, for completion of an assembly of a final audit, which is an admin process, time to SQC after the auditor's report is required by SQC 1. तो आप ये जो है ना, कौन है, इसका नाम क्या है, रजनी. रजनी को आप क्या गाइडेंस देंगे कि रजनी सुनो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर 230 आपको टाइमली बेसिस पे ही करना पड़ेगा. अगर आप दिन का कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आपको दिन का वो रखना ही पड़ेगा फाइल में. हाँ, बट जब असेंबली का बात करते हैं, बोले असेंबली जस्ट सिलेक्ट करेक्ट एवरीथिंग, उसमें कुछ स्टिकर लगाने का, ये कौन सा फाइल है, एंड एडमिन प्रोसेस. बट उस वो कब करेंगे आप, कब खत्म करेंगे आप, ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर. ये दोनों भी अलग अलग कंसेप्ट है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड योर व्हाट assembly of audit file as per SQC 1, not more than 60 days from the date of auditor's report. I hope you have got that. Okay, simple. Next, discussing the meaning of completion memorandum, elaborate upon its importance. मतलब 3 घंटे में ये क्वेश्चन आता है, completion memorandum. तुम्हें क्या मतलब क्या है ये completion memorandum? अच्छा, by the way, memorandum is draft. ये क्या है, draft है. Pay attention ना. It is a summary that describes the significant matters identified during the audit and how they are addressed in office. सर, ये जो मेमोरेंडम है, इसका मतलब क्या है कि कौन से इश्यूज तुमको आए थे और वो इश्यू एड्रेस कैसे हुए. पे अटेंशन. Such a summary may facilitate effective and efficient review and inspection of the further audit documentation. Further, the preparation of such summary may assist auditors' consideration of similar matters. It may also help the auditor to consider whether there is individual as an objective the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective. Okay. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कंप्लीशन मेमोरेंडम आता है, इट इज अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज समरी विच द मैटर्स जो तुमने आइडेंटिफाई किए थे वो मैटर्स एड्रेस कैसे हुए. ये छोटा समरी है ताकि आपको आगे ऑडिट में वो मदद कर सके. ठीक है. नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. ये अपन ऐसे 230 करते हैं, सबका ध्यान चाहिए. An important factor in determining the form, content, and extent of audit documentation of significant matter is the extent of professional judgment exercised in performing the work and evaluating the results. Explain stating clearly the example of significant matter. अच्छा, by the way, सर क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है ये, ऐसे 230 का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि तुम जब डॉक्यूमेंट करते हो तब सिग्निफिकेंट मैटर आपको क्या है, आपके हिसाब से क्या है. तो एग्जांपल्स क्या क्या है, matters that give rise to significant risk, results of audit procedure indicating that the FS could be materially misstated. आपको समझ में आ रहा है. Need to revise auditor's previous assessment of the risk of material misstatement, circumstances that causes the auditor significant difficulty in applying necessary audit procedure, finding that could result in modification to the audit opinion. मतलब अगर इसमें से एक भी होता है तो significant matters में आपका जाएगा as per ऐसे टू. चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये जस्ट हुआ है. सीए रिपुन कंप्लीटेड द, कुछ 4-5 क्वेश्चन बाकी है, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज. ओके. सीए रिपुन कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी and the audit report was issued on 17th of July 20. However, he had not properly organized the audit working papers. The साहब ने काम तो किया but कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया उसने बराबर, मतलब रखा नहीं प्रॉपरली, including records of discussions with management, audit procedures and confusion reached. मतलब कुछ कहने से audit काम जब खत्म किया और बोला audit खत्म हो गया. More than 6 months after issuing the report, he received a letter from the regulator in connection with the audit of the company, requesting him to share a copy of the audit file. तो हो सकता है कि आईसीए ने उसको पूछा कभी कभार, एनएफआरए ने उसको पूछा. एनएफआरए को भी पावर है, सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. एनएफआरए का इनको लेटर आ गया कि काम करो, सीए रिपुन जी जो आपने 6 महीने पहले ऑडिट किया था ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ. तो अभी इनका बैंड बच गया, बस भाई साहब कुछ बनाया नहीं था. तो इन हरी सीए रिपोन क्विकली असेंबल्ड द ऑडिट फाइल. कौन सा वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड यूज किया, असेंबल्ड. असेंबल्ड अभी जस्ट किया था 5 मिनट पहले. एडिंग सम पेपर्स, जो भी उसने से लिया पढ़ा लिया, उसने फाइल बनाया necessary and he used the current date. भाई साहब ने आज का डेट यूज किया जब उसको वो ऑर्डर आया था. On this newly added documents, he then sent the audit file to regulator, discuss the issues involved related to audit documentation and assembling of the audit file. मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा ध्यान रहेगा ना, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. मैं आपको पहले ही बताया कि audit documentation must be on timely basis and the assembly of the audit file as per SQC 1 should be done when
60 days from the audit report. अरे भाई साहब ने किया ही नहीं है, अरे 6 महीना हुआ तभी उसने असेंबली नहीं किया था. देखो, so in the given case, even after passage of more than 6 months, CA Ripun has not assembled the audit file. Besides, he has put in some paper with कुछ भी, just for the sake of giving the regulator कुछ भी दिए. It shows that part of the audit documentation has been prepared after putting a question of उसका quality of audit. म्हणजे CA Ripun has not done the audit in a very quality manner. कुछ भी देने के लिए उसने क्या कर दिया, दी के रखा है. समझ में आ रहा है आपको? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको ये समझ में आया क्या दोनों. ठीक है, चलो अभी ये कुछ 3-4 क्वेश्चन डाले मैंने, ये आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन से, ये वाले आरटीपीस भी कवर करके. सो ये कारो का एक क्वेश्चन है. यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी. द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ निधि कंपनी. व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ निधि कंपनी, द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. ओके, तो आपको पता रहेगा कि भाई साहब क्लॉज 12 है उसमें, ये अगर याद आया तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसका जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं. तो निधि कंपनी का ऑडिट कैसे करेंगे, 2-3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पे अटेंशन. whether निधि कंपनी has compiled with the net own funds to deposit in the ratio of 1:20. तो भाई साहब जो रेशियो मेंटेन करना निधि कंपनी को, इट शुड नॉट बी मोर देन 1:20. सो 1 क्या है, ओन फंड्स, खुद के फंड, और 20 से डिपॉजिट. निधि कंपनी का काम ही वही ना भाई, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. तो रेशियो इसके ऊपर जाना नहीं मांगता. ठीक है. सेकंड, निधि कंपनी is maintaining 10% unencumbered term deposits or unencumbered without any obligation. At least 10% तो इतना होना चाहिए. Whether there has been any default in payment of interest on deposit, अगर डिफॉल्ट किया रहेगा तो आप आपकी कारों में अपडेट कर दीजिए. ये 3 पॉइंट है निधि कंपनी. नेक्स्ट, अच्छा, मेरे हिसाब से आप ये मुझे आंसर दे सकते हैं, या आप ये मुझे आंसर दे सकते हैं. ये वाला क्या है, यू आर द ऑडिटर ऑफ प्लस बैंक लिमिटेड. ओके, द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर योर इंडियन 31st March. Provision for bad debts, provision for substandard asset, provision for expenses, and provision for income. Okay, no problem. You are in the process of verifying the provisions and contingencies of the bank. What audit approach and procedures will you adopt to verify the above? प्रॉब्लम क्या है बगा, मतलब जब एक स्टूडेंट वो 3 घंटे में ये पढ़ेगा ना, तो उसको लगेगा यार ये प्रोविजन का क्वेश्चन है भाई, वो अपना 15%, 25%, 40%, 100%, पर नहीं. This question is not on that. This question is on your audit approach. तो इसमें नंबर्स का कुछ खेल नहीं, वो टेबल तो ऐसे ही दिया तुमको. क्वेश्चन काय विचारलंय, तिने असं सांगितलंय का की हमने इतना इतना प्रोविजन किया था, तुम बताओ कितना प्रोविजन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया हम लोगों ने. अरे आपका ऑडिट अप्रोच पूछा है, ऑडिट अप्रोच कैसा होना चाहिए. सबसे पहले अगर ये प्रोविजन बनाए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंश्योर दैट कंप्लायंसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड. तो जो भी कंप्लायंसेस है वो फुलफिल हुए क्या, मतलब वो परसेंटेज वाले. obtain an understanding as how the bank computes the provision on what NPA. तुमने कैसे कंप्यूट किया वो हमको एक बार बताओ समझ के, मतलब सब स्टैंडर्ड, फिर वो D1, D2, लॉस एंड ऑल दैट. obtain the detailed breakup of standard loans. obtain the tax provision computation. अगर तुम्हें टैक्स का प्रोविजन किया है तो कौन से बेसिस पे किया है वो भी एक बार हमको एक्सप्लेन करो. examine the other provision for expenses. मतलब एक ही चीज है इन सब में, आपको एक चीज बोलता हूं मैं, आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा मैनेजमेंट से. आपका ऑडिट अप्रोच वही है, कंप्लायंस चेक करने पड़ेंगे रेगुलेटरी के साथ, उसके बाद आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, जो भी प्रोविजन रहेगा, टैक्स प्रोविजन रहेगा, एक्सपेंस का प्रोविजन रहेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ना कौन से ग्राउंड पे तुमने बनाया है. अगर टैक्स से कंप्यूटेशन है तो बताओ हमको टैक्स से वर्किंग कैसे है, कैसे तुमने प्रोविजन किया है इसका, तो आपको यही पूछना पड़ेगा. ये आपका ऑडिट अप्रोच है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बाकी, आई थिंक 1 2, हाँ इतने बाकी. पे अटेंशन. CA Ayush has recently qualified and joined a CF. On going through various audit report, he observed that different phrases were used to express an unmodified opinion on the FS. और भारी क्वेश्चन 3 मार्क को पूछा गया था. On inquiring with a senior, he got to know that all those phrases can be regarded as being equivalent. Which phrases are appropriate and which phrases are inappropriate while drafting an unmodified opinion? What is the meaning of unmodified opinion? That is your unqualified. That इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, clean opinion. Tell me one thing, if you want to give an unmodified opinion, a very clean report, an audit report, what words will you use? So आप लिखेंगे according to your opinion. Obviously an auditor does not give a complete guarantee, it gives a reasonable assurance. तो क्या लिखेंगे, in my opinion the financial statements shows a true and fair view. आप वही लिखते हैं ना. हाँ, अगर आपका एडवर्स ओपिनियन है या आपका अगर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं. अच्छा मुझे एक बताएंगे, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब यही अनक्वालिफाइड है,
मुझे आप बताएंगे क्या आप इसमें सब्जेक्ट टू ये वर्ड डाल सकते हैं? सर नहीं सर, अगर अनक्वालिफाइड इसका मतलब है यू आर ऑन अ वेरी गुड टर्म्स। आपको ये लग रहा है कि इन लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो अप टू द मार्क बनाए। दीज गाइस हैव फॉलोड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो किए इन लोगों ने, और आपके हिसाब से देयर इज नो क्वालिफिकेशन एट ऑल। तो आप क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन से वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले, in our opinion, the accompanying affairs present fairly in all material respects in accordance with that. So, लिखना नहीं है आपको, जो बोल्ड में वो important है। In our opinion, the accompanying affairs gives a true and fair view, जो मैंने आपको कहा। तो आप दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सबसे पहले, they present fairly in all material respects, और सेकंड का लिख सकते हैं, give a true and fair view। हे इक्विवेलेंट झाले, हे दोन्ही पण सेम झाले, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। हाँ सर, इनअप्रोप्रिएट क्या रहेगा वो बताओ। अरे भाई, विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन, क्यों सब्जेक्ट टू। अरे सब्जेक्ट टू अगर आता है और अगर ऊपर का आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो वो कैसे कंपेयर होगा रे? ऊपर तो क्वालिफाइड चाहिए ना फिर। तो ये आपको अवॉइड करना है अगर आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो। आई होप यू हैव गॉट दिस, आई होप यू हैव गॉट दिस। ओके, चलो नेक्स्ट, वेट दिस 25 पे अटेंशन। PK and Company Chartered Accountants are the stat auditors of JC Limited. CA Tarun, partner of Messrs PK and Company, was entrusted to supervise and verify the inventory items on 31st of March. During the process of verification, a large chunk of draft inventory, बहुत क्वेश्चन भारी है भाई, सुनो, ये रिसेंट वाला क्वेश्चन है। During the process of verification, a large chunk of draft inventory, draft वर्ड पे हाईलाइट करता हूं मैं, were accumulated and then a final inventory sheet was prepared. The audit assistant has kept all these drafts and the final inventory sheet in the audit file. Is the approach of the audit assistant correct? Which paper the documents may not be included in the audit documentation? SA 230 का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन। अरे मुझे एक बताओ, प्लीज पे अटेंशन। आप जब आर्टिकलशिप शुरू करेंगे एंड व्हेन यू कम अक्रॉस ऑल दिस स्टफ, आपके ऑडिट फाइल में, इन योर वर्किंग ऑडिट फाइल, इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, विल यू कीप ऑल द पेपर्स ऑफ व्हाट? मतलब तुम आज के दिन तुमने अगर कुछ स्टॉक टेक किया है तो तुम्हारा कुछ, तुमने रैंडमली पेंसिल से कुछ किया था, स्टॉक टेक 1 2 3 4, और तुमने बाद में जाके फाइनल शीट भी बनाया, ये मेरा फाइनल शीट है, तो ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा? सर ये वाला जाएगा ना फाइनल वाला, ये क्यों जाएगा? तो इस भाई साहब ने क्या किया है, अरे सब कुछ डाल दिया उसमें। अरे तो इससे कंफ्यूजन होगा ना, जब बाद में आपको रेफरेंस ले चाहिए तो आपको यही समझेगा ना कि कौन सा पेपर यूज करना है, क्योंकि उसमें ड्राफ्ट भी रहेगा, उसमें फाइनल भी रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फाइनल पेपर्स इज रिलेवेंट है। अरे हे ड्राफ्ट वगैरह नाही आहे, तोच क्वेश्चन 4 मार्क्सला विचारला की नाही, विचारा बघा। In the given case, the audit assistant, वो copy paste किया उन्होंने, the draft thing, okay, as a the chunk of draft inventory sheets and final inventory sheet in audit file, which is not correct. Why not correct? And then draft on that level. As audit is not required to document the draft inventory sheets, the auditor should ensure that only the final inventory sheets will form part of the audit documentation. तर एवढे पेपर का ठेवले त्याच्यामध्ये? मग कोणतं बघायचं आम्ही नंतर? रेफरेंसला चाहिए। लेट अस से अगले साल में तुम ही ऑडिटर हो उसके, 5 का तुमको टर्म मिल गए, एंड नेक्स्ट ईयर तुमने फाइल खोल दिया, तुमको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेपर रेफर करना है, बिकॉज तुमने उसमें दोनों में डाल दिया था। So as per 230, audit documentation may be recorded on paper or electronic or other media. The auditor did not include the following thing: superseded draft. Or what is superseded? So for example, if this is one paper, अगर ये एक पेपर है और इसके बाद और एक पेपर आ गया, लेट अस से दिस इज वन मोर पेपर, दिस इज माय फाइनल पेपर, तो इसने इसको सुपरसीड किया। सुपरसीड म्हणजे काय? हे माझं फाइनल एडिटेड वर्जन है, तो हे मी काय करणार, दिस आई विल पुट इन माय ऑडिट वर्किंग फाइल, नॉट दिस वन। ओके, सेकंड, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इन कंप्लीट और प्रीलिमिनरी, जो इनकम्प्लीट है, जो अभी भी इन प्रोसेस है, वो मैं क्यों डालूं उसमें? सब कंप्लीटेड वाले ही उसमें जाएंगे। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स, कई बाबा टाइपिंग एरर्स आ गए, वो करेक्ट करना है मुझे, तो वो मत डालो उसमें। एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हाई विल यू पुट डुप्लीकेट्स? व्हाई विल यू मेक द फाइल वेरी बिग? यू हैव टू कीप इट वेरी क्रिस्प, क्लीन, सो दैट यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इन दैट। तो तुम ही कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, भाई समझ में आ रहा है? तो ये भाई साहब इसमें इंक्लूड होने वाला नहीं है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन है, चलो ओके। नेक्स्ट ये अच्छा, क्वेश्चन 26 इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन है, दीस डेज 3 मार्क के लिए पूछा था, बट बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। Schedule 3 of the Companies Act prescribes disclosure of certain ratios
as a part of additional regulatory information mention any three ratios that should be disclosed along with the rules. अभी एफएम का तुमको थोड़ा सा भी रेशियो पता है, थोड़ा सा रेशियोज करंट रेशियो वगैरह ये आप लिख सकते हैं, आप तो यहाँ पे रेशियोज बहुत लिखे, करंट रेशियो, डेट इक्विटी और डेट सर्विस, रिटर्न इक्विटी, तीन सांगितलं तुमके कमेंट थ्री. ओके, inventory turnover, trade receivable, trade payable, net capital turnover, net profit, return on capital employed, return on investment. You can just write it. The company shall explain the item included in the numerator and denominator for computing the above ratios. तो कंपनी को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, मेंशन भी करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इज 100, बताना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कहां से है, सेल्स कहां से. Further explanation shall be also provided for any change in the ratio by more than 25% compared to preceding year. Important point है ये, रेशियो तुम लिख पाओगे बहुत इजी है, बट दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंपनी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी लगेगा. अगर पिछले साल और ये साल का रेशियो में 25% अगर चेंज हुआ तो आपको एडिशनल करना पड़ेगा भाई, लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट टाइम इस बार 25% का डिफरेंस है, सो यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ राइज और डिक्रीज इन दैट जीपी रेशियो. ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 27. आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक आप खुद ही मुझे आंसर दे पाएंगे इसका. Mrs. PQ Limited has a turnover of 807 crores. Okay. During the financial year, it has outstanding dues towards GST of 10 lakhs since June 23. Understand the question very properly. Your वापस turnover 807 करोड़ का है. उसके बाद GST का outstanding due कितना है? 10 लाख है, वो भी जून 23 से. When inquired by the auditor, the company's management informed him that they have filed an objection letter for the said demand with the GST authorities. तो जब आप ऑडिट कर रहे थे तो आपने बोल दिया अरे यार ये तो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है हमको 10 लाख, तो ये आपने बताया क्यों नहीं है, यहाँ पे मेंशन क्यों किया नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उन्होंने आंसर क्या दिया आपको कि नहीं नहीं हमने इसलिए नहीं दिया ताकि हमारा डिस्प्यूट चालू हो. However, no response is received from the GST department. Take the reporting responsibility for the auditor under paragraph 3 clause 7 of CARO. अभी आप चेक करेंगे आरटीपी में भी ये क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी क्वेश्चन आया. बताए आपने दो चीजें की ऊपर, तुम अगर याद रहेगा तो तुम अगर स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज अपन ने किया था और रिलेटेड पार्टीज किया था. स्टैट ड्यूज में ये सेम पॉइंट था, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया उन्होंने. अच्छा आप मुझे बताएंगे इस केस में एज अ ऑडिटर व्हाट इज योर अप्रोच, व्हाट इज योर अप्रोच इन दिस, व्हाट इज योर अप्रोच, टेल मी एनीवन. मुझे एक बताएंगे अगर इन लोग ने आपको ऐसा आंसर दिया है कि नहीं यार इस पर डिस्प्यूट चालू है, तो आप क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हाँ हाँ चल कोई बात नहीं डिस्प्यूट चालू है क्या, कोई बात नहीं मैं इस पर मेंशन नहीं करूंगा. नहीं भाई, अगर डिस्प्यूट चालू है तो वो डिस्प्यूटेड ड्यूज में आने वाला है. अगर डिस्प्यूटेड ड्यूज में आता है तो आपका काम क्या है, ये पूछना है कि भाई ठीक है अगर डिस्प्यूटेड ड्यूज में है ना तो फोरम कहां पे वो बताओ, कौन से फोरम में पेंडिंग है ये. दैट वाज एग्जैक्ट वर्ड व्हिच आई यूज्ड लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कारो का. देखो CARO auditor is also required to report as per clause 7b. The stat dues referred to in subclause have not been deposited in account of any dispute. Then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. Mere representation to concerned department shall not be treated as a dispute. क्या बात कर रहे हो? See, first of all, आपका जहां पे चालू है यहाँ पे आएगा. Also और एक बात है, अगर उस डिपार्टमेंट ने आपको आंसर नहीं दिया है उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. और एक चीज है आपको बोलता हूँ मैं, only a mere representation to concerned department. मतलब कभी कभी क्या होता है अपने पूछते हैं, we ask some queries to the department कि this is right or this is wrong. This is not a dispute. A dispute मतलब there has to be a proper dispute. Someone versus someone, case ठोका है. There has to be a plaintiff, there has to be a defendant. Then only there will be a dispute. Okay? जस्ट जाके कुछ इंक्वायरी की है, कुछ पूछताछ किया है और वो आपको बोल रहे नहीं डिस्प्यूट चालू है, हमने अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया, नहीं इसको डिस्प्यूट नहीं बोलते. ओके, डिस्प्यूट का मतलब दे हैव टू बी वेरी गुड टू पार्टी, देन दैट्स कॉल्ड अ डिस्प्यूट. समझ में आ रहा है आपको? दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट. ओके, देयर विल बी मोर ऑडिट सेशंस. आज इतने वी हैव टेकन दिस मच क्वेश्चंस. ओके, देयर विल बी वन मोर ऑडिट सेशन, देयर विल बी वन मोर ऑडिट सेशन. Okay, important question answers. We'll keep it on 16th of December 24. This will be your part 2. This will be your part 2. Okay, if you want the notes, there's a number in the description box, can do that. This is one. And इसके बाद आपका लॉ का सेशन भी आएगा, वो भी इसी वीक में रहेगा. I've just rescheduled the dates. Sorry for that because CMA के एग्जाम चल, that's why I need to be at the centers, that's why I've just rescheduled it.
लॉ सेशन में रहेगा, लॉ का तो कभी मिस भी मत करो, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। पहले ऑडिट खत्म करेंगे 16 को, एंड इन दिस वीक ओनली मे बी व्हाट ऑन द 18th 18th of December 24 I'll take your law का सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ओके। प्लीज मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, और तुम जितना ज्यादा वैरायटी करेंगे ना ऑडिट में, सी सी आई टेल यू द लॉजिक। इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू रीड वन चैप्टर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तुमने अगर 230 पढ़ा, सेकंड मॉड्यूल का जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा, तो उसके बाद क्वेश्चंस करो। इट माइट बी आरटीपी जो इसमें ऑलरेडी है, और 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, और सबसे बेस्ट आई एम टेलिंग यू मॉडल क्वेश्चन आंसर। Please do that question answers, then only your chapter ends over, okay? और ऐश्वर्या उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है? After that we will start the test, as simple as that, okay? Once your law session is over, उसके बाद immediately we will start the test, okay? So law, I think test will remain as it is, and audit का session होने के बाद law का session होगा, उसके बाद I start the test, okay? चलो, so thank you so much. You can use this, you can just take a print out of the same. कितने आपको करना है? Just do these questions. I'll add more questions to this and I'll send you the PDF. Okay. Thank you so much.